how are you guys? So welcome to a very important session. Today we have Tirath Kumar with us. He is ranked 37 for All India Merit List of for Indian Military Academy. रिजल्ट आ चुका है CDS का, CDS फाइनल मेरिट लिस्ट का रिजल्ट आ चुका है 2019 का, और हमारे साथ है तीरथ कुमार जिनकी रैंक आई है 37 इस साल, ठीक है। और इनका बहुत ही वेरिड एक्सपीरियंस है, 3 बार पहले भी रिकमेंड हो चुके हैं TSC स्कीम के लिए, टेक्निकल एंट्री स्कीम के लिए, AFCAT के लिए, and this was the third time he got recommended. He has been to 8 SSBs, 2 Bangalore, 2 Kapurthala, 1 Varanasi, 1 Bhopal and 2 times Allahabad. बहुत ही अच्छा डिटेल्ड एक्सपीरियंस है इनका एसएसबी का, 3 टाइम्स रिकमेंड हो चुके हैं। रिटन एग्जामिनेशन इन्होंने AFCAT का, CDS का क्वालिफाई करा है मल्टीपल टाइम्स। तो बहुत ही रोचक रहेगा ये, बहुत ही डिटेल्ड इंटरव्यू रहेगा ये, जिससे आपको बहुत गाइडेंस मिलेगी फॉर द रिटन एग्जामिनेशन एंड फॉर द एसएसबी। मतलब 8 एसएसबी का एक्सपीरियंस, जिसमें 3 टाइम्स रिकमेंडेशन है। तो ही हैज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस इन द सेंस कि सर मेरे को कहां पर मैंने गलतियां करी, कहां पर मैं सक्सेसफुल रहा, कितने सारे मिथ्स हैं उसको हम डिस्पेल करेंगे, खासकर जो एसएसबी से रिलेटेड है। और जो रिटन एग्जामिनेशन में इनकी खासकर स्ट्रैटेजी रही उस पर भी हम बात करेंगे। इन्होंने एनडीए भी क्वालिफाई करा था, टीएस भी क्वालिफाई करा था, बट इन एनडीए कुडंट क्लियर दी एसएसबी। तो काफी सारी चीजें हैं जहां पर ये तीरथ हमें हेल्प करेंगे, एंड स्पेसिफिकली टू द एस्पिरेंट्स हु गो फॉर टीएस, एनडीए, AFCAT एंड CDS entry. So welcome Tirath to the Shaurya and Vivek, and बहुत ही first of all congratulations to you. Thank you sir, thank you so much sir, it's an honor sir. ठीक है, तो वेलकम वेलकम। तो मैंने तुम्हारे बारे में इंट्रोडक्शन दिया है और मैं चाहता हूं कि अब तुम अपने बारे में बताओ बिफोर वी गेट इनटू द डिटेल्ड एनालिसिस। हम रिटर्न और एसएसबी में मूव करें, पहले आप अपने बारे में बताओ, कहां से हो, कैसी रही है इतनी लंबी जर्नी इंडियन आर्मी में। अब फाइनली यू आर फाइनली फिट, मेडिकली फिट। अब तो मुझे आई शुड कॉल यू जेंटलमैन कैडेट तीरथ कुमार। इट इज जस्ट सम मंथ्स फ्रॉम नाउ। Yes sir, sure sir. My name is Tirath and I belong to Hoshiarpur district of Punjab, and sir, as such I am a Fauji brat. My father is in the army. He has served the army for 26 years of honorable service, and sir, my journey has been really exciting. I must say that I am one of those who people say that hardcore repeater and aspirant. And I have seen and I have seen, as people say, the most dreaded SSB centers, namely Allahabad, Kapurthala and Bangalore, Bhopal. Correct. And some of them call them rejection centers. So sir, also sir, I have qualified my CDS written 4 times. I have also qualified NDA once, and moreover sir, in all of my 8 attempts I have total of 3 recommendations, one from Bangalore and one from Bhopal and one from Varanasi. And sir, journey has been so exciting, and moreover sir, it has been more of a learning experience. And you can't learn all of the lessons in just one attempt. It's just your luck. It's just your luck if you get through one attempt. But moreover, I think the person who who just learns by the journeys of more than some SSB attempts, he is the one who has got something, and he's the one who can tell you something. So sir, I must say that I'll like to share all of my experience with all. And sir, with that, thank you sir, thank you for inviting me sir. Sure. So, and you missed AFCAT. You qualified AFCAT also. Yes sir, I have qualified AFCAT once, first time written, first time AFSB, and all sir. ठीक है, वो मैंने कहा मिस हो गया था ना, तो मिस नहीं करना है। So, sure sir, sure. Reiterating the point, NDA qualified, और जो टेक्निकल एंट्री स्कीम है TS, तो वो तो 12 की परसेंटेज पर है। He qualified that also. उसका रिकमेंडेशन भी हुआ था, इसका मेडिकल्स भी क्लियर थे, बट फिर मेरिट का इशू हुआ वहां पर। एनडीए का कॉन्फ्रेंस आउट का केस है, उसके बाद AFCAT भी पूरा क्लियर हुआ, AFSB से रिकमेंड हुआ। देन अगेन वी ऑल नो दैट एयरफोर्स मेडिकल्स आर वेरी हाई, एंड एज वी नो जिसका कोई नहीं है उसकी इंडियन आर्मी है। Sure sir. You were telling me also that ना, that मेडिकल जार्गन जो हम लोकल पार्लेंस में यूज करते हैं सर, जो एयरफोर्स फिट है वो नेवी आर्मी फिट है, जो नेवी फिट है वो नेवी और आर्मी फिट है, पर जो सर आर्मी फिट है वो आर्मी फिट। He is only army fit sir. Yes sir. Correct. It's a notion among sir candidates sir कि आर्मी वाला आर्मी फिट है सर। हाँ, मतलब इसको यूज करते हैं। तो हम क्या करेंगे तीरथ, हम रिटर्न प्लस एसएसबी के हिसाब से चलेंगे,
ठीक है, तो पहले श्योर मैं सर, श्योर सर। रिटर्न के अंदर जो तुम्हारी स्ट्रैटेजी रही, आई विल आस्क फॉर सीडीएस एफकेट एंड देन यू कैन गिव अ लिटिल बिट फॉर द एनडीए एंड एनडीए कैंडिडेट्स एज वेल, ठीक है, सिंस तुमने वो भी ओके क्वालिफाई करा फाइन। था। ठीक है, तो सबसे श्योर पहले सर। तो सीडीएस के अंदर 3 पेपर थे और तुमने सीडीएस हर बार ही क्लियर करा है, तो तुम्हारा मैथ्स इंग्लिश जीएस की क्या स्ट्रैटेजी रही थी? तुम एक एक सब्जेक्ट वाइज जा सकते हो, क्योंकि काफी सारे बच्चों को ये बेसिक प्रॉब्लम है, जैसे जिसकी बहुत ही ज्यादा मैथ्स खराब है वो ओटीए पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करता है। तो क्या क्या स्ट्रैटेजी रहे? खासकर जीएस में बहुत प्रॉब्लम आती है, कितना पढ़े कितना छोड़े, ठीक है, तो तुम एक एक सब्जेक्ट वाइज अपनी स्ट्रैटेजी बताओ। श्योर सर। सर आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद इंग्लिश बिकॉज सर उसमें कुछ ज़्यादा है नहीं है। एंड सर इंग्लिश में बेसिकली द थिंग इज दैट there are 120 questions as all of us know, and sir, even if you score like from 60 to 70 marks, it will be fine enough to clear for OTA as well as for IMA. And sir, provided sir English may sir, most of the candidates sir which I do talk to sir, they say that they have some problems in like they are arranging wale questions na, from like S1 to S6 sentences are there, and you know they take time, and moreover they are not able to do it accurately. एंड तो सर उसमें सर बेसिकली जनरल पैटर्न आई वुड लाइक टू डिस्कस कि उसमें कुछ क्वेश्चंस रहते हैं आपके वोकैबुलरी के, एंड आफ्टर दैट यू हैव सम अरेंजिंग वाले क्वेश्चंस, पीक्यूआरएस वाले, दैट आर सिंपल, फेयरली सिंपल, एंड सर आफ्टर दैट यू हैव रिपोर्टेड स्पीच एंड दे हैव रिसेंटली स्टार्टेड एडिंग like active passive and you know small things like idioms and phrases. So sir as such I must say that English का section काफी scoring रहता है. अगर आप सर इंग्लिश के सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर्स जो आपके हैं, अगर आप विद इन टाइम फ्रेम अगर आप वो प्रैक्टिस करते हैं अच्छे से, like what I used to do was that I used to open a PDF on my phone, then I used to set a timer for 2 hours just like an exam, then I would just put a series of number from 1 to 120 on separate notebook, and then I would solve the questions of English and then put options A B C just like I used have to put in exam. एंड सर उसकी वजह से क्या हुआ कि सर मैंने काफी मतलब प्रैक्टिस किया उसके बारे में, एंड सर विद इन टाइम सर मेरे मार्क्स इंक्रीज करते गए. फर्स्ट ऑफ ऑल सर मुझे 50 आए, देन 55, देन 60, देन सर आफ्टर दैट 65 इंक्रीज, मेरे मार्क्स सर इंक्रीज करते गए विद सॉल्विंग पेपर्स. एंड सर सेपरेटली सर कुछ मतलब मैंने ऐसा कुछ इंग्लिश के लिए नहीं किया था, एक्सेप्ट सर एरर्स जो कि सर काफी इंपॉर्टेंट है. एरर्स के वी हैव लाइक 20 क्वेश्चंस, 15-20 क्वेश्चंस हर बार आते हैं. एंड सर मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स को ये दिक्कत होती है कि हम कहाँ से पढ़ना चाहिए, कितने सारे रूल्स हैं. तो सर उसके लिए मैं कहूँगा कि यू हैव पाथ फाइंडर. सो जो आपके पास पाथ फाइंडर आती है उसमें सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के सॉल्यूशंस दे रखे हैं आपको, एंड सर विद दिस सॉल्यूशन दे हैव गिवन अ रूल. With this solution they have given a rule, even if some candidate do all the previous year question papers and their errors, तो सर वो रूल्स रिपीट होते रहते हैं. सर फॉर एग्जांपल एक रूल काफी आता है, जैसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का एक रूल आता है हमारे पास, इट हैज बीन रेनिंग, इट हैड बीन रेनिंग. तो सर वो क्वेश्चन काफी इनका एक पेट क्वेश्चन यू कैन से वो है. एंड सर सम थिंग्स लाइक वन ऑफ इज ऑलवेज फॉलोड बाय प्लूरल सेंटेंसेस, एंड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के क्वेश्चंस आते हैं. तो सर इवन इफ अगर किसी कैंडिडेट को इंग्लिश के लिए सर इसमें प्रिपेयर करना है, तो वो बेसिकली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर जितने हैं उसके सारे जितने रूल्स आ रखे हैं वो एक बार रिवाइज कर ले अच्छे से. एंड प्लस अरेंजिंग वाले क्वेश्चंस के लिए सर आई वुड से इट्स ओनली प्रैक्टिस. इसके लिए सर कोई ट्रिक नहीं है, कोई टिप्स नहीं है कि आप कुछ मतलब करोगे तो आपका सॉल्व हो जाएगा. इट्स ऑल बेस्ड अपॉन प्रैक्टिस. Yes sir, S1 to S6 wale, because sir they are lengthy in sentences also, and moreover sir it requires you know great perseverance to do them, because sir वो बहुत ही patience के साथ करने होते हैं. So I would say कि sir PQRS वाले are fairly easy, because even if you go by options you can do easily, but S1 S6 में even if you go by options sir it will take a lot of time. So अगर आपको S1 S6 वाले questions करने हैं तो आप अक्सर अगर जितना practice करोगे ज़्यादा आप previous year papers की, आपकी सर accuracy बढ़ती जाएगी सर टाइम के साथ, ये आप खुद सर ऑब्जर्व करेंगे. ठीक है, तो आई जस्ट रिटरेट जो तीरथ कह रहा था, ये मैं पहले भी बहुत बार क्लासेस में कह चुका हूँ कि अपने आप को गेज करने के लिए आप कितना एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर्ड है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को उठा के सॉल्व करें, सो दैट आपको ये पता लगे कि आपकी असली में औकात कितनी है, इंग्लिश में कितनी है, मैथ्स में कितनी है, जीएस में कितनी है, और जो वीक एरियाज पे आप कॉन्सेंट्रेट. एंड फॉर दैट पाथ फाइंडर में तो मैं हर बार बोलता हूँ दैट बुक इज गुड फॉर क्वेश्चन पेपर्स, क्योंकि उसका जीएस का सेक्शन तो बहुत ही खराब ही लगता है मेरे को, क्योंकि उन्होंने जीएस 50-60 पेज में पूरी कंप्लीट कर दी है, और असल के अंदर जो सीडीएस की जीएस है वो काफी इन डेप्थ आ रही है. मतलब जैसे सीडीएस 2019 1 का पेपर बहुत ही टफ था, फिर 2019 2 इजी आया और 2021 भी इजी है, पर 2019 1 का पेपर तो बिल्कुल सिविल सर्विसेज का प्रीलिम्स ही लग रहा था, वो इतना मुश्किल जीएस पूछा गया था.
और ये भी तुमने देखा होगा कि सीडीएस के पेपर में ज्यादातर जो चेंजेस आ रहे हैं वो जीएस में बहुत ज्यादा है कंपेयर टू इंग्लिश एंड मैथ्स। इंग्लिश और मैथ्स थोड़े स्टैटिक है, इतना चेंज नहीं आया है 5-7 इयर्स में जितना जीएस में इन्होंने, तुम्हें लगता है कि पैटर्न में चेंजेस आए हैं? ऑफ कोर्स सर, मैंने सर जब पेपर्स प्रैक्टिस किए थे तो सर मैं आपको बताता हूँ रियली, तो मैंने अगर आप पहले देखेंगे तो सर इट वाज इवन, अगर आप पॉलिटिक एग्जांपल लेते हैं जीएस में तो सर इट वाज रियली फैक्चुअल, लाइक दे हैव आस्क्ड हु वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी, सिंपली क्वेश्चन। बट सर नाउ सर दे हैव चेंज्ड द पैटर्न ड्रास्टिकली, दे हैव इंक्रीज्ड देयर लेवल फ्रॉम लाइक टू इन डेप्थ नॉलेज सर, इवन इफ द पर्सन हैव रेड दैट फ्रॉम यू नो, अगर ऊपर ऊपर से वो पढ़ लेगा कि मैंने अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऊपर ऊपर से प्रीएम्बल पढ़ लिया तो हो जाएगा सर, इट विल नॉट हेल्प। आपको सर इन डेप्थ पता होना चाहिए कब कब कौन से वर्ड्स ऐड किए गए थे, कौन सी अमेंडमेंट हुई थी, बिकॉज दे आर आस्किंग क्वेश्चंस लाइक दैट, दे आर गिविंग यू स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन सर। अब बेसिकली वन वर्ड से उन्होंने अपना पैटर्न धीरे धीरे चेंज करना स्टार्ट कर दिया है, तो सर आई थिंक चेंज काफी आया है। 1 and 2 स्टेटमेंट्स, 1 and 2 आर राइट, 2 and 3 आर राइट, वो हाँ चार सर, वाला, राइट सर, राइट। हाँ वो जो पहले सिविल राइट सर्विसेज में देखते थे अब वो इसमें, एंड दिस ये सिमिलर पैटर्न अब जो असिस्टेंट कमांडेंट वाला सीएपीएफ एग्जामिनेशन है वहां पर भी कॉमनली दिख रहा है, दोनों में ही दिखने लगा है। पहले काफी ज्यादा ड्रास्टिक डिफरेंस था, अब इतना कॉमनली दिख रहा है उसके अंदर। करेक्ट। तो ये हमें तीरथ अभी इंग्लिश के बारे में बता रहे थे एंड देन भी हमने थोड़ा जीएस का पार्ट पूछा। तो तीरथ इंग्लिश के लिए एनी अपार्ट फ्रॉम पीवाईक्यूज तो है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तुम कह रहे हो सबसे मतलब कुंजी है इस पेपर को क्रैक करने के लिए, उसके अलावा कोई बुक्स तुम रेकमेंड करते हो? सर आई मस्ट नॉट से एनी बुक सर, बुक मैंने कोई फॉलो नहीं की थी पर्सनली भी, बिकॉज सर जो सर बेसिक्स अगर आपको सर अगर मतलब किसी को बुक से ही पढ़ना है तो सर आप पास फाइंडर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स कर लीजिए। बट सर उसमें भी मैं बोलूंगा कि सर बहुत ज्यादा कंटेंट है इंग्लिश का, बिकॉज वो बहुत मोटी बुक है, तो सर सब कुछ पढ़ना उसमें पॉसिबल नहीं है सर। वोकैबुलरीज में आप देखेंगे थाउजेंड ऑफ वर्ड्स आर गिवन, तो सर वो पढ़ना मेरे हिसाब से समझदारी नहीं है। तो आई हैव जस्ट स्टिक टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एंड रिपीटेड प्रैक्टिस ऑफ दैट। एंड अगर सर किसी को रूल्स वगैरह देखने हैं, बेसिक एक्टिव पैसिव रूल्स, रिपोर्टेड स्पीच, सो दे कैन सी सम लाइक यू नो ऑनलाइन वीडियो, और सर बुक्स फॉलो करना इज सर वोकैबुलरी ग्रामर यू नो इट्स वेरी वास्ट, सो आई थिंक उतना हमें जरूरत नहीं है उसके लिए। तो सर इंग्लिश में आई मस्ट से दिस ओनली सर। आई थिंक वोकैबुलरी के लिए तो यार मतलब आई थिंक यू विल आल्सो एग्री विद दिस, वोकैबुलरी के लिए न्यूज़पेपर रीडिंग या न्यूज़ एनालिसिस इज अ रिक्वायरमेंट, नॉट ओनली फॉर सीडीएस रिटर्न बट फॉर एसएसबी, जहां पर तुम्हारे पास ग्रुप डिस्कशन लेक्चरेट्स में नेशनल और इंटरनेशनल टॉपिक्स पर बात करनी पड़ती है, और आईओ yes sir, right भी। sir you are absolutely right sir, I have also been me also sir reading newspaper from like April 2018 sir I started, very nice, even before my CDS exam, and sir I have been sir हिंदू सर पढ़ना शुरू किया था मैंने, एंड सर फ्रैंकली सर पहले मैंने जब स्टार्ट किया पढ़ना तो सर मुझे एटोल तो पूरा कुछ समझ ही नहीं आया क्या लिखा है उन्होंने। सर तो हम क्या करते थे, मैं और मेरा फ्रेंड साथ में प्रिपेयर करते थे, तो हम लोग मतलब वो एडिटोरियल पेज निकाल के पूरा उसको ऐसे क्रश करके फेंक देते थे सर पढ़ने के लिए, क्योंकि सर समझ ही नहीं आता सर वो। लेकिन सर विद टाइम सर कुछ हमें समझ आया, हमने वर्ड्स देखे डिक्शनरी में से, फिर हमें सर सेंटेंसेस समझ आने लगे। एंड सर आई मस्ट से आप सही बोल रहे हैं कि इसमें जो वर्ड्स होते हैं हम न्यूज़पेपर में से उठाए जाते हैं वर्ड्स, वो जैसे आप कॉमन वर्ड्स इन पास से, एम्बॉडीमेंट, लाइक ऐसे वर्ड्स एडिटोरियल्स में से, आपके वर्ल्ड के सेक्शन में से उससे उठाए जाते हैं, तो न्यूज़पेपर रीडिंग विल बी वेरी बेनिफिशियल सर। करेक्ट करेक्ट। अरे मतलब ये ना कॉमन क्वेश्चन है, मैं तुमसे ये अलग से पूछना चाह रहा था बट यहीं पे पूछ लेता हूँ यार। एक कॉमन प्रॉब्लम तीरथ है जो मुझे कंटिन्यूअसली आती है जब भी मैं लेक्चर लेता हूँ, सर हिंदी में एसएसबी कैसे पास करें, पहला क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा सर कि इंग्लिश को कैसे सुधारे, रिटन इंग्लिश और वर्बल इंग्लिश, इसको तुम थोड़ा आंसर करो कि हिंदी में एसएसबी कैसे क्वालिफाई होता है। सर एक्चुअली सर इसमें सर ये बहुत मिथ है सर, एक बना सबका लोगों का बना हुआ है सर। एक्चुअली क्या है कि मैं आपको एक्सपीरियंस बताता हूँ सर। आई वेंट फॉर माय फर्स्ट एसएसबी टू बैंगलोर, एंड सर वहाँ पे एक लड़का था, एंड ही वाज लाइक सर कंप्लीटली ही वाज फ्रॉम लाइक वेरी फार फ्लंग एरिया। सर उसे इंग्लिश इतनी बिल्कुल नहीं सर आती थी, वो सर फट्टे को भी प्लैंक नहीं बोलता था वो सर, समथिंग फटला एंड ऑल, आई डोंट नो द लैंग्वेज सर, फटला एंड समथिंग बोलता था सर वो से। तो सर वो भी सर ही गॉट स्क्रीन्ड इन एंड ही वेंट टिल conference also, but he couldn't get recommended because of some obvious issues, his confidence was not that well. तो सर अगर ऐसे बंदे कर सकते हैं सर, तो आई डोंट थिंक सर हिंदी में कुछ ऐसा किसी को सोचने की जरूरत है। एज मैंने टिल नाउ, अगर जब तक आप अपना जो आइडिया है अगर आप मैसेज कन्वे कर पा रहे हैं नेक्स्ट पर्सन को, इन द जीडी यू आर एबल टू पुट सम वैलिड पॉइंट, in interview you are able to give some good answers to the IO so that he can understand what you are saying, so I think it is good. And sir moreover they also say, तीरथ मैं यहाँ पर ये कहना चाह रहा हूँ कि जिनकी मैं बात कर रहा हूँ कि काफी सारे मिथ, बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस हैं जो बोलते हैं कि आप पूरा अपना एसएसबी
हिंदी में ही दे सकते हैं, आईओ से हिंदी में बात कर सकते हैं, साइकोलॉजी भी हिंदी में लिख सकते हैं, वो थोड़ी पॉसिबल है। No, sir, सर्वाइवल it's इंग्लिश not तो नीड possible. है ना। Yes, sir, survival English is needed, sir. वो खुद बोलते हैं कि the medium of the medium of the talking is English. And अगर आपको सर इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप थोड़ी देर के लिए इंग्लिश में आप हिंदी में 1 से यूज 2 कर सकते हैं, सेकंड then हिंदी में revert बोल back. सकते हैं। Yes, sir, then revert back as soon as possible to back to English. Just हाँ, because सर आप फंबल ना करो हाँ, and you have your fluency, इसलिए सर वो हिंदी बोलते हैं. बट आप सीधा अगर हिंदी में बोलोगे तो सर इट्स नॉट पॉसिबल ना, बिकॉज ऑल द मिलिट्री ब्रीफिंग्स बाद में जो होती हैं सब इंग्लिश में होती हैं, तो आप सर हाँ। कहाँ हिंदी में कर पाओगे. और वो जितने सो आई भी थिंक सर टेस्ट आपको होते हैं एसएसबी के, वो भी सारे साइकोलॉजी के, वैट, एसआरटी, एसडीटी, और आगे चल के तुम्हारा जो आईओ का है और ग्रुप डिस्कशन लेक्चर, दैट आर आल्सो हैपनिंग इन द इंग्लिश. फॉर दैट मैटर ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, दीज आर ऑल हैपनिंग इन इंग्लिश. यस सर, दे आर ऑल हैपनिंग इन इंग्लिश. सो यू मस्ट, सर यू मस्ट, मैं बोलता हूँ कि अगर आपको नहीं आती है तो यू मस्ट प्रैक्टिस, यू मस्ट लर्न अ बिट कि आप कैसे मतलब अपने इंग्लिश में बेसिक आइडियाज, सर बेसिक आइडियाज आपको अपने कन्वे करने के लिए कुछ हाई फाई इंग्लिश नहीं चाहिए, एक नॉर्मल सेंटेंस बनाने वाली इंग्लिश चाहिए सर. तो सर आई मस्ट से कि इंग्लिश इज इम्पोर्टेंट एंड इट्स नॉट कंपल्सरी बट इट इज इम्पोर्टेंट कि आपको आना चाहिए सर करने के लिए उसको. एंड सर हिंदी का आप जितना इस्तेमाल कम करोगे दैट विल बी बेटर, बिकॉज आपकी सर एक क्वालिटी होती है फैक्टर 1 की, पावर ऑफ एक्सप्रेशन जिसे बोलते हैं सर हम, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट सर. तो पावर ऑफ एक्सप्रेशन अगर आपका इंग्लिश में कमांड अच्छी है एंड यू आर वेल वर्स्ड विद इंग्लिश लैंग्वेज, सो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू सर. ठीक है. और किसी को अपनी अंग्रेजी इंप्रूव करनी है, वर्बल इंग्लिश, बोलने वाली इंग्लिश, लिखने वाली, उसके लिए लिखने वाली में तो न्यूज़पेपर आ गया, न्यूज़पेपर रीडिंग, एनी अदर थिंग जो तुमने अडॉप्ट करी फॉर इंप्रूविंग योर इंग्लिश? सर इंग्लिश तो सर बेसिकली सर मेरा from childhood सर थोड़ा ठीक था, because I have been taking part in lot of activities sir, like public speaking was my favorite. Every time debate used to happen, extempores used to happen, some speaking even used to happen, I used to participate. तो सर जितने भी सर अगर एस्पिरेंट्स हमारे हैं जो कॉलेजेस में हैं, तो सर आई वुड से कि आप जितना पब्लिक स्पीकिंग में पार्ट लेंगे, द मोर यू टेक पार्ट इन पब्लिक स्पीकिंग, एक्सटेम्पोर्स, डिबेट्स, स्पीचेस, एंड जितना आप करेंगे सो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू सर, बिकॉज until unless you practice yourself and you see yourself speaking English, तो सर तब तक आपका सर वो अच्छा नहीं होगा. एंड सर कुछ लोग सर रिकमेंड करते हैं जैसे कि आप मूवीज देख सकते हैं एंड बुक्स पढ़ सकते हैं इंग्लिश की अच्छी. हाँ मूवीज देख सकते हैं, तो सर उससे भी आपका एक अच्छा बन जाता है. बट आई मस्ट से कि ज्यादा जो अगर जितना आप सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा बेटर होगा. तो सर आई मस्ट से कि अगर आपको स्पीकिंग वगैरह करनी चाहिए तो आपको इस सब चीजों में सर पार्ट लेना चाहिए. करेक्ट करेक्ट. ठीक है. तो इंग्लिश के अंदर तीरथ ने हमें बताया कि रिटन एग्जामिनेशन के लिए पीवाईक्यूज पे फोकस करें, चाहे आप वो यूपीएससी की वेबसाइट से उठाएं या फिर आप बुक से उठाएं. और उसके साथ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू डू अ लॉट ऑफ न्यूज़पेपर रीडिंग, बिकॉज इट विल हेल्प यू इन द रिटन एग्जामिनेशन एज वेल एज द एसएसबी, बिकॉज एसएसबी के मैक्सिमम टेस्ट आपके वर्बली हो रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम सम ऑफ द टेस्ट जिसके अंदर आपकी साइकोलॉजी पूरा आपको लिखना पड़ेगा उसके अंदर, और पीपीटीटी में भी आपको लिखना पड़ेगा, और मेनी टेस्ट, बेसिकली मिक्स ऑफ बोथ. तो इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू हैव अ कमांड ओवर द लैंग्वेज, बिकॉज फौज के अंदर जो आगे चलकर आपका सारा काम होने वाला है वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही होगा. ठीक है. तो इन दैट वे इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू स्टार्ट वर्किंग. उसके लिए इसने एक्सटेम्पोर, डिबेट्स एंड डिफरेंट चीजें बताई हैं. तो तीरथ, मूविंग ऑन, व्हाट वाज योर स्ट्रैटेजी फॉर मैथ्स? तो सर मैथ्स के लिए सर व्हेन आई स्टार्टेड फर्स्ट, तो आई वाज आल्सो कंफ्यूज्ड कि मुझे क्या पढ़ना चाहिए सर, बिकॉज है ना उसमें वेरिएशन ऑफ क्वेश्चंस हैं आपकी सर, एडवांस मैथ्स भी आता है एंड यू हैव सम एनालिटिकल मैथमेटिक्स भी आता है, उसमें रीजनिंग वाले क्वेश्चंस भी कुछ मिलते हैं आपको. तो सर व्हाट आई डिड वाज फर्स्ट आई जस्ट एनालाइज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स कि उसमें क्या क्या टॉपिक आ रहे हैं एंड व्हिच टॉपिक दे आर हिटिंग मोर एंड व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस एंड व्हाट परसेंटेज ऑफ सेक्शन, लाइक ज्योमेट्री का कितना परसेंटेज है, एनालिटिकल रीजनिंग का कितना परसेंटेज है, एंड आपका अर्थमेटिक उसमें परसेंटेज कितना है उसका. एंड देन सर अकॉर्डिंग टू माय स्ट्रेंथ मैंने उसको सर मतलब डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड किया था. बिकॉज फॉर एग्जांपल एफकैट में आपका अगर आप देखेंगे तो एफकैट में आपका अर्थमेटिक पोर्शन ज्यादा आता है एडवांस लेवल का, तो सर उसके लिए भी मेरा हेल्प हो जाएगा. तो सर दैट्स व्हाई मैंने सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई टारगेट अर्थमेटिक सेक्शन, प्रॉफिट लॉस, सीपी एंड क्वेश्चंस, एंड उसके बाद सर आपकी जो नंबर सिस्टम हो गए, लॉजिक हो गया, उसके बाद टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम्स, यू हैव अदर क्वेश्चंस लाइक एचसीएफ, एलसीएम, एंड सर ये स्मॉल टॉपिक्स जो थे सर मैंने ये टारगेट करने स्टार्ट किए. एंड देन सर मैंने इनकी यूजुअल, पहले मैंने सर इनका डिटेल्ड जितने भी टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं मैंने सारे पढ़े, कितने क्वेश्चंस होते हैं इसके. आफ्टर दैट सर मैंने फिर पेपर्स जब प्रैक्टिस किए तो सर आई रियलाइज्ड कि सर इतना कुछ हमें नहीं चाहिए, मतलब अगर आपके पास एक टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आ रहा है तो सर वो हर साल रिपीट हो रहा है सर वही क्वेश्चन सेम. तो सर उसमें सर आप देखेंगे तो सर काफी एडवांस लेवल के क्वेश्चंस भी जाते हैं, जैसे एफकेट में काफी एडवांस आना शुरू हो गया है.
टाइम एंड वर्क के, लेकिन सर उतना सीरियस में नहीं चाहिए उसका जो क्वेश्चन है। तो सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मैंने काफी प्रैक्टिस किए हैं, अगेन सेम विद सेम मेथड, 2 hours टाइमिंग एंड पुटिंग द सीरियल नंबर एंड देन सॉल्विंग क्वेश्चंस। तो सर मैंने उसमें वो किया था। आफ्टर दैट सर एडवांस ज्योमेट्री की सर अगर हम बात करें, उसमें जो मेंसुरेशन सेक्शन आपका एक आता है। करेक्ट। तो सर मेंसुरेशन सेक्शन में सर आपके कुछ चैप्टर्स हैं जो काफी, जैसे वॉल्यूम्स, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, अगर आपको उनके फॉर्मूलेज भी पता है और आपकी कैलकुलेशन थोड़ी अच्छी है, इफ यू आर गुड इन मैथ्स, तो सर आप वो अच्छे से कर सकते हैं। एंड सर व्हाट आई अवॉइडेड इन मैथ्स सेक्शन इज बेसिकली द स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस, the questions in which they have given 2 statements and they have asked just like the UPSC का जो सर PET मेथड है कि only one, only two। तो जीएस वाले पेपर में ज्यादा दिखते हैं। यस सर, जीएस वाले पेपर में जो ज्यादा दिखते हैं सर, वैसे मैथ्स में भी सर अभी दिखने शुरू हो गए हैं सर, उसमें पूछता है only one, only two। एंड सर जब मैंने वो प्रैक्टिस की पेपर्स, तो सर आई रियलाइज्ड कि मेरे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, मतलब उसमें मेरी एक्यूरेसी बहुत कम है, मतलब उसमें एक्यूरेसी मेरी इतनी ज्यादा नहीं है, आई विल नॉट बी एबल टू स्कोर इट एंड मेरा नेगेटिव ही जाएगा। तो सर मैं सर जब भी क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करता था, तो सर आई अवॉइडेड कि मैं वो क्वेश्चंस करूं, बिकॉज सर वो क्वेश्चंस सर काफी दे आर मोर ऑफ अ एनालिटिकल, उसमें आपको थोड़ा सोचना पड़ता है, दे आर नॉट जस्ट बेस्ड अपॉन फॉर्मूला। तो सर आई जस्ट अवॉइडेड देम। एंड सर जो बाकी सेक्शन था मेरा मेंसुरेशन का एंड अर्थमेटिक जितना था सर, दैट आई डिड a lot of practice sir, a lot of practice again and again of papers। एंड सर जैसे मैंने पहले आपको बताया, इंग्लिश में वैसे भी सर इसमें मेरे मार्क्स इंक्रीज कर दिए गए, पहले 40 42, फॉर द फर्स्ट टाइम आई जस्ट डिड 42 क्वेश्चन सर। एंड सेकंड टाइम सर व्हेन आई एनालाइज सर व्हाट आई डिड रॉन्ग, आई वाज नॉट एबल टू मैनेज टाइम, देन आई एनालाइज्ड द पेपर्स अगेन, देन आई सॉ ऑल द टॉपिक्स, देन आई अरेंज देम बाय माय स्ट्रेंथ कि मैं किसमें अच्छा हूं, किसमें बुरा हूं, या मैं किसमें इंप्रूव कर सकता हूं। देन सर आफ्टर दैट मैंने पेपर्स प्रैक्टिस किए। एंड सर यूजुअली आई यूज्ड टू डू सर पेपर एवरी डे सर, 2 घंटे मतलब करना ही करना है मैथ्स सर, सीरियल वाइज। एंड सर माय marks started increasing, 40 42 50 55 60 64। Then sir second time when I gave, then I did 64 questions sir, from 42 directly 64 just with a practice sir। तो सर मैथ्स में मैं सर यही बोलूंगा कि अगर आपकी मैथ्स इवन इफ गुड नहीं है आपकी कमांड, तो सर कुछ बच्चे सर ऐसे रेफर करते हैं एनसीईआरटीज या RS अग्रवाल पकड़ लेते हैं, या कुछ पाथ फाइंडर भी अच्छे से करते हैं। तो सर मैं बोलूंगा कि पहले आप प्रीवियस ईयर पेपर्स कर लीजिए। अगर आप सर वही आप 5 to 6 टाइम्स अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे, तो सर आपकी कमांड मैथ्स में बहुत अच्छी हो जाएगी, बिकॉज देयर इज डेफिनेट सेट ऑफ क्वेश्चंस दे आस्क, देयर इज नॉट सर लॉट ऑफ अ डिफरेंस इन मैथ्स पेपर ना, जैसे आपने सर पहले मेंशन किया था कि इतना ट्रेंड चेंज नहीं हो रहा मैथ्स में। एंड सर यू आर एब्सोल्युटली राइट, उसमें सर क्वेश्चंस जो होते हैं वो बेसिकली सर वही पूछते हैं सर, वो बार बार सेम सेट ऑफ क्वेश्चंस पूछते हैं, और आप देखिएगा सर जो सेम टॉपिक होता है उससे वही क्वेश्चन नेक्स्ट ईयर रिपीट होगा। जैसे खासकर मेंसुरेशन और ट्रिग्नोमेट्री में तो बहुत कॉमन है ये। यस सर, मेंसुरेशन ट्रिग्नोमेट्री सर ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चंस आते हैं। आप देखेंगे वो जो एक क्वेश्चन आपको मिलता है सर, एक sin 1 डिग्री प्लस sin 2 डिग्री ऐसे वाला क्वेश्चन वो मिलेगा, या फिर आपको हाइट एंड डिस्टेंस में भी सर सेम क्वेश्चन मिलता है। हाइट एंड डिस्टेंस, हाँ सर, हाइट एंड डिस्टेंस में सेम क्वेश्चन मिलता है सर, उसमें एक प्लेन जा रहा है सर, वो 2 पॉइंट से पास करेगा एंड सर डिस्टेंस कितना होगा उसमें बताना है। तो सर उसमें बेसिकली फॉर्मूला बेस्ड अगर आप ज्यादा ध्यान देंगे तो सर आपका हो जाएगा। एंड अगर आप फोकस करेंगे कि मैं ट्रायंगल्स वाले क्वेश्चन कर लूं, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, कांग्रुएंसी, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में घुस जाऊं और एडवांस ज्योमेट्री कर लूं, तो सर फिर आपका टाइम सर माइनस से खराब होगा। तो इसलिए सर बेटर है कि आप जो बाकी सेक्शन है उस पर ज्यादा फोकस करें। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पढ़ना चाहिए। एंड सर मैंने बेसिकली क्वेश्चन वाइज टारगेट किया था अपने पेपर को, जैसे HCF LCM आ रहा है तो मैं HCF LCM के सारे एक बार क्वेश्चन देख लूं क्या क्या आते हैं, उसके बाद उनका मेथड एक बार प्रैक्टिस कर लूं अच्छे से, आफ्टर टाइम एंड वर्क के, आफ्टर दैट नंबर सिस्टम के, लॉजिक सिस्टम के। देन उसके बाद सर एक क्वेश्चन बहुत कॉमन है जो पूछा जाता है कि व्हाट इज द रिमाइंडर क्या बचा है ना, व्हेन यू डिवाइड 2 raised to power 49/4 ऐसा सर पूछते हैं। तो सर उसमें मतलब कुछ बच्चे ऐसे रिमाइंडर थ्योरम पूरा पढ़ना शुरू कर देते हैं सर, वो बहुत एडवांस है, तो सर उसकी जरूरत नहीं है। अगर आप सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को टारगेट करेंगे बार बार, तो सर यू विल बी, है ना, यू विल हैव लॉट ऑफ प्रैक्टिस एंड आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा वो। इट विल आल्सो मेंटेन योर स्पीड सर। करेक्ट। तो तीरथ इज वेरी स्ट्रेटेजिक एंड वेरी कैलकुलेटिव। आप जरा देखिए कि इंग्लिश के अंदर स्ट्रेटेजिक है, कैलकुलेटिव है, ये तो पहले से ही फौजी तैयार बैठा हुआ था, ठीक है, जस्ट इसको एक प्रूव करना था रिटन एग्जामिनेशन SSB क्लियर करके। मैथ्स के अंदर भी इतनी स्ट्रेटेजिक अप्रोच कि भैया सर मैं सेक्शन बाय सेक्शन जाऊंगा और उन सेक्शंस को फोकस करूंगा जहां मैं स्कोर कर रहा हूं, जहां पर एक्यूरेसी लो हो रही है ही सेड कि इनको हटाओ जी, जहां पर स्कोर हो रहा है एग्जैक्टली अर्थमेटिक को फोकस करना, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, एडवांस मैथ्स, जो जो इसके स्ट्रॉन्ग एरियाज थे इसको उसने और स्ट्रॉन्ग करा, और जो वीक से मतलब जैसे इसका जो जहां पर 80% आ रहा था वहां 85 90 लेके गया,
जब 50 आ रहा था वहां से 50 से 60 लेके गया, और ओवरऑल कॉम्प्रिहेंसिव इसका रिजल्ट मैथ्स में भी इंप्रूव हुआ और इंग्लिश में भी इंप्रूव हुआ। और इसका बेसिक अभी तक जो हमने 2 सेक्शन से बात करी है, इसका मूल मंत्र जो अभी तक तीरथ का में लगा है वो है PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट तीरथ? बहुत सर, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सर, वेरी इंपॉर्टेंट सर। Tirath, any books you would want to recommend for maths specifically to any student apart, मतलब जो प्रीवियस और क्वेश्चन पेपर उठाता है बट उसकी नॉलेज नहीं है, तो कौन सी बुक से वो अपनी स्टार्टिंग करे? NCERT, RS अग्रवाल, एनीथिंग व्हिच यू वांट टू टेल? सर जस्ट एज यू आस्क कौन सी बुक मुझे करनी चाहिए, सर आई हैव डन बोथ RS अग्रवाल एज वेल एज पाथफाइंडर, एंड सर मैंने कुछ ऑनलाइन कोर्सेज भी वगैरह भी देखे हैं, एंड सर बट आई मस्ट से कि सर RS अग्रवाल में आपको सर वो क्या है कि एक फॉर्मूलाज देते हैं सर आपको एक पेज पे, देन उसके बाद क्वेश्चंस हैं, फिर सर क्वेश्चंस काफी वैरायटी के हैं सर, उसमें MBA क्लैट लेवल के क्वेश्चन है, तो सर वो इतना एडवांस जाने की सर आई मस्ट से जरूरत नहीं है। तो एंड पाथफाइंडर में भी सर देयर आर लॉट ऑफ फॉर्मूलाज, इतने फॉर्मूलाज सर याद रखना पॉसिबल नहीं है। तो सर अगर किसी को करना भी है तो सर आई मस्ट से पहले प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स कर लीजिए आप, उसके बाद सर आप अगर आपको एडिशनल क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं तो आप पाथफाइंडर RS अग्रवाल दोनों से कर सकते हैं, बट ऐसा कोई मतलब सर फिक्स नहीं है कि अगर आप RS अग्रवाल ही पकड़ेंगे तो आपका होगा। एंड सर इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि दे हैव लॉट ऑफ एडवांस क्वेश्चंस, उसमें सर अगर आप टाइम खराब करोगे तो आपका सर आप मेन आपका जो एम है उससे आप हट जाओगे। एंड सर अगर आप सिर्फ हेल्प के लिए एंड डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स के लिए करना चाहते हैं तो RS अग्रवाल एंड पाथफाइंडर आर बोथ इक्वली गुड, यू कैन फॉलो बोथ। ठीक है, और any major topics for maths which you will recommend to candidates and the right method to prepare them as per you? श्योर सर, जस्ट एज आई सेड कि सर मैं अर्थमेटिक को ज्यादा टारगेट करता हूँ, बिकॉज इट इज आल्सो है ना, इट इज आल्सो हेल्पफुल इन FCAT आल्सो, एंड इनके सर एग्जाम्स आसपास ही होते हैं, 1-2 महीने का फर्क होता है, तो सर अगर आप अर्थमेटिक को सर आप काफी स्ट्रॉन्ग कर लोगे, प्लस आपके सर कुछ चैप्टर्स हैं, मैं सर मेरे पास सर अभी नोटबुक नहीं है मेरी, बट सर आई विल टेल यू कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ट्रिग्नोमेट्री, एंड यू हैव दैट सेक्शन सर आपका सर एक आता है, उसमें सर ट्रायंगल्स का एक सेक्शन आता है, उसमें सर जो क्वेश्चन पूछता है कि you have a triangle and you have a point D on the hypotenuse and then you join from mid of a perpendicular to point D, then what is the length of CD, what is the length of AB। so ये क्वेश्चन सर काफी रिपीट होता है, तो इसके सर जितने भी 5-6 टाइप्स हैं सर, इसके ज्यादा नहीं है, तो सर अगर आप वो पढ़ लेंगे। एंड एक और क्वेश्चन सर मैं बोलूंगा आपको कि जो टॉपिक वाइज जैसे आप मेंसुरेशन कर सकते हैं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, एंड सर मेंसुरेशन के बाद यू कैन गो फॉर सरफेस, उसमें सर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम आता है आपका, देन एरियाज ऑफ सर्कल्स आता है, देन उसके बाद सर आपका यू कैन फोकस ऑन अर्थमेटिक सेक्शन ऑफ टाइम एंड वर्क, HCF LCM, नंबर सिस्टम, टाइम, देन पाइप एंड सिस्टम्स, यू कैन फोकस ऑन दैट। रेशियो वाले क्वेश्चन सर बहुत आते हैं, एक्सपेंडिचर वाला क्वेश्चन एक आता है, उसमें सर आपको रेशियो दे देगा कि रेशियो इतनी है, अभी कितनी रेशियो होगी। एंड सर वन मोर टाइप ऑफ क्वेश्चन है मुझसे एक्सपेंडिचर वाला सर, एक क्वेश्चन काफी पूछते हैं वो लोग, दैट इज अ पेट क्वेश्चन, सो अगर आप कुछ नहीं करोगे उसमें वही कर लोगे तो आपके तब भी सर उसमें मार्क्स आ जाएंगे, एक्सपेंडिचर वाला क्वेश्चन सर जो है। then you have HCF LCM, number system, and you have time and distance, then sir you have boards and streams का भी एक क्वेश्चन आएगा आपको, that's a very simple sir, उसके लिए कुछ एडिशनल प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है। अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम, वो पॉलिनोमियल वाला क्वेश्चन, अलजेब्रिक इक्वेशन वाला क्वेश्चन, ये तो बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो इन्होंने बदले ही नहीं है। बिल्कुल सर, यही क्वेश्चन अगर आप करेंगे, एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई मस्ट से सर काफी इंपॉर्टेंट है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दे आस्क लॉट ऑफ क्वेश्चंस सर, एनडीए में भी एज वेल एज सीडीएस में भी, वो तो सर देयर इज देयर फेवरेट टॉपिक, तो सर उसमें सर मैं ये बोलूंगा सर आप ये वाले टॉपिक सर पढ़ लीजिए, एंड सर इट विल बी फाइन सर। एंड सर एक और चीज सर जो मैं सर बोलना चाहता हूँ सर, एक्चुअली सर मैंने क्या किया था कि जो क्वेश्चंस मुझे लगा था कि मुझे जो एडिशनल मार्क्स दे सकते हैं, लाइक आई हैव प्रैक्टिस, जो मैंने पूरा प्रिपेयर कर लिया, उसके बाद सर मुझे लगा कि अगर मुझे कुछ एडिशनल मार्क्स चाहिए इसमें कि मेरे सर थोड़ा अच्छा मतलब जैसा कि अभी हुआ है कि मतलब अच्छा रैंक आ जाए और अच्छा मतलब मार्क्स आ जाए, तो सर उसके लिए कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होते हैं सर, अलग अलग जैसे पूछते हैं वो लोग, जैसे आपको मैंने आगे बताया कि वो D पॉइंट दे देगा, फिर आपको पूछेगा CD की लेंथ कितनी है ना, CD = AD × BD ऐसे पूछेगा, तो सर वो उसके अगर आप क्वेश्चन वाइज अगर आप टारगेट कर लोगे, उसका मेथड एक बार देख लोगे सोल्यूशन, तो सर वही क्वेश्चन आपको पूछेगा वो रिपीटेडली, तो सर वो आप विदाउट एनी टॉपिक फॉलो किए स्टैटिक स्पेशली क्वेश्चन वाइज जाके अगर आप मार्क्स ले सकते हो सर उसमें, तो सर ऐसे क्वेश्चन भी सर टारगेट कीजिए सर जो। करेक्ट। और तीरथ ने जो अभी बोली थी ना कि उसकी एक बुक लिस्ट है जिसके अंदर उसने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखे हैं, तो वो वीडियो के आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे या कमेंट सेक्शन में, अदरवाइज मैं वीडियो में ऐड कर दूंगा, वो आपको मिल जाएंगे, राइट तीरथ? हम बाद में शेयर कर देंगे। यस सर, ठीक है। तो एंड सर वन मोर थिंग सर, आई फॉरगॉट टू ऐड सर, आई एम सॉरी सर। हां, इट्स ओके, इट्स ओके सर उसमें सर जैसे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जब आप पढ़ते हो,
तो सर उसमें बेसिकली सबको लगता है कि फॉर्मूले पढ़ने हैं, कैलकुलेशन तो हो ही जाएगी वहाँ पे सर, लेकिन ऐसा नहीं होता है सर वहाँ पे एग्जाम में। सर बेसिकली डिफरेंसेस की सर वो पूछेगा आपको, सिंपल क्वेश्चन नहीं देगा, वो आपको बोलेगा कि एक स्फीयर के बीच में सिलेंडर डाल दिया, या एक सिलेंडर के बीच में हमने स्फीयर डाल दिया है, और एक स्फीयर के बीच में क्यूब डाल दिया है। तो सर वहाँ पे हमें कुछ जो मतलब हम जो चीजें पढ़ी होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि डायगोनल ऑफ ए जो आपका क्यूब होगा वो डायमीटर ऑफ स्फीयर के इक्वल होगा। सर अगर आपको ये पहले से पता होगा तो सर आपका टाइम भी बचेगा। अगर आप सर वहां सोचने में बैठेंगे तो सर नहीं हो पाएगा। तो सर ऐसी चीजें पता होनी चाहिए कि अगर आप सिलेंडर को स्फीयर में डालेंगे तो सर उसका डायमीटर उसके कितने इक्वल होगा। रिलेशन अगर आप थोड़े से एक दो याद कर लेंगे, आपको प्रैक्टिस के साथ अगर आपको अपने मेमोरी में आपके आ जाएगा तो सर वो बेनिफिशियल रहेगा सर। तो करेक्ट। तो फिर अगेन तीरथ, जैसे कि पीवाईक्यूज प्रैक्टिस से इसको एक बहुत अच्छा आइडिया लग गया था कि किस तरीके के सवाल आ रहे हैं, उस तरीके से इसने प्रैक्टिस करी। और ये कह रहा है कि भैया फॉर्मूले रटने से कुछ नहीं होगा, फॉर्मूले की एप्लीकेशन जब तक तुम्हें नहीं आती, और एप्लीकेशन तभी आएगी जब प्रैक्टिस करोगे। मतलब ये वाले जो तुम क्वेश्चन कह रहे हो, याद है हमारे 9th और 10th के बोर्ड्स में हम प्रैक्टिस करते थे, 10वीं के बोर्ड से पहले क्लास करते थे। तो और उस टाइम पे कमांड भी बनाते थे। तो उसी टाइप की आपको, अगर आपकी कमांड छूट गई है तो बनानी पड़ेगी, सो दैट आपका पेपर में मैक्सिमम अटेम्प्ट तभी होगा जब आपकी स्पीड होगी, आपकी एक्यूरेसी होगी। और एक्यूरेसी का मतलब है कि स्पीड से अटेम्प्ट करना और करेक्ट भी करना। उसका कोई फायदा नहीं है कि स्पीड से अटेम्प्ट कर रहे हो और गलत आंसर कर रहे हो, ठीक है। तो वो आपको प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सर। ठीक है, तो प्रैक्टिस तो सर मुझे 10th क्लास के भी मैंने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए सर, मुझे अभी तक भी याद है उनके आंसर क्या क्या उनके आंसर थे, इतना प्रैक्टिस कर लिया था। ठीक है। तो मैथ्स तो मैं अपनी, मतलब मैथ्स पर काफी वर्क करा तुमने अपनी। ये सर मैथ्स तो सर आई हैव एनडीए के टाइम में भी सर काफी किया था, बट तब सर थोड़ा मार खा गए सर, थोड़ा ना प्रैक्टिस एंड टेक्निक के उस पे। बट सर उसके बाद सर फिर यूपीएससी सर 4 टाइम सर डायरेक्टली क्लियर कर दिया था मैथ्स का, तो विद मैथ्स कभी सर लगा नहीं। ठीक है। और अब आते हैं जो सबसे ड्रेडेड एरिया, जो मतलब सबकी मतलब जान अटकती है उस एरिया के अंदर, वो है जीएस का एरिया, सीडीएस का। सबसे डिफिकल्ट एरिया जो मैंने स्टूडेंट से बात करी है उनको जीएस का, फॉर दैट मैटर जो इंजीनियर्स हैं, तो जो 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 मैथ्स और इंग्लिश में अच्छे भी हैं, उनका भी सबसे डरावना एरिया उनको बस जीएस लगता है कि जीएस के अंदर कैसे गेम खेला जाए। और एक और चीज तीरथ में पूछना चाहता हूँ, ये जो तुमने एग्जाम क्लियर करा है, ये अपनी ग्रेजुएशन के साथ करा है कि ग्रेजुएशन कंप्लीट करी थी, और किसमें करी है ग्रेजुएशन? सर आई हैव डन माय ग्रेजुएशन इन बीएससी ऑनर्स फिजिक्स, एंड सर मैंने सर अपने 2 सीडीएस सर थर्ड ईयर में क्लियर किए थे अपने, इन माय थर्ड ईयर, ड्यूरिंग माय थर्ड ईयर। ओके, ठीक। एंड सर 2 मैंने बाद में किए हैं सर। अच्छा, ठीक है। तो और कहाँ से करी है तुमने बीएससी फिजिक्स ऑनर्स? सर आई हैव डन माय बीएससी ऑनर्स फ्रॉम एलपीयू सर, जलंधर सर। अच्छा, हाँ, एलपी, करेक्ट करेक्ट। तो इसने आप ये भी देखिए, इसने 2 सीडीएस के एग्जामिनेशन अपनी ग्रेजुएशन के साथ ही निकाले, जस्ट सिमिलर टू माइन बिकॉज आई आल्सो डिड द सेम। और उसके बाद फिर बाकी इसका जो फाइनल रिकमेंडेशन वो अब है ग्रेजुएशन के बाद। तो तीरथ, जीएस के बारे में बताओ, जिसका सवाल है जीएस के बारे में, क्या स्ट्रैटेजी रही, कैसे तुमने प्रिपेयर करा जीएस, सीडीएस की जीएस के लिए? सर जीएस तो सर फर्स्ट ऑफ ऑल आई मस्ट से कि सर जिन लोगों को लगता है कि हम सिर्फ थोड़ा सा पढ़ लेंगे या 1 महीना पढ़ लेंगे हो जाएगा, तो सर इट इज अ मिथ, ऐसा नहीं होता है। सर उसके लिए सर काफी कॉम्प्रिहेंसिव प्लान चाहिए आपको सर आपकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस पता होनी चाहिए कि आप किस चीज में अच्छे हैं। सर फॉर एग्जांपल सर जब मैंने जीएस के लिए प्रिपेयर करना शुरू किया था, तो सर स्टार्टिंग में तो फर्स्ट टाइम आई सॉ पेपर, तो सर मुझे कुछ थोड़ा लगा कि मेरे लिए नहीं एग्जाम, ये मुझे नहीं देना चाहिए जीएस जिस आपका एग्जाम था सर, बिकॉज सर काफी पैटर्न उनका डिफरेंट था एंड क्वेश्चंस वर रियली टफ। ज्योग्राफी एंड बिकॉज सर आई एम अ साइंस बैकग्राउंड स्टूडेंट, तो ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सर ये सब तो मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या है। एंड सर साइंस वाज फेयरली इजी, एंड साइंस सर अभी भी फेयरली ठीक आती है। एंड तो सर जीएस में बेसिकली क्या था कि मैंने थोड़ा सर अपना स्टार्टिंग में सर बताऊं आपको, मैं तो आई फोकस्ड मोर ऑन अदर सब्जेक्ट्स लाइक पॉलिटी, ज्योग्राफी, देन आई फोकस्ड ऑन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। एंड सर इसमें मैंने फोकस किया बिकॉज आई वाज साइंस स्टूडेंट, तो मुझे थोड़ा मतलब सर आई एम गुड इन साइंस आल्सो, तो मुझे था कि मैं साइंस कर लूंगा, साइंस ज़्यादा टफ नहीं है। तो सर पॉलिटी के लिए आई मस्ट से कि पॉलिटी ही ऐसा एक सब्जेक्ट है जीएस एग्जाम में जो आपको बचाएगा वहाँ पे, जो आपको करवा सकता है। अगर आप पॉलिटी छोड़ के जाएंगे और आप सोचेंगे बाकी कर लेंगे, तो सर देयर इज वेरी लेस चांसेस। तो सर पॉलिटी के लिए आई टुक लक्ष्मीकांत। एंड सर उससे पहले सर मैं बताना चाहूंगा बुक लिस्ट पे आने से पहले कि मैंने सर जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर थे सर मैंने उनका पूरा डीप एनालिसिस किया। मैंने सर आपकी मतलब वीडियोस वगैरह भी देखी थी जो आपने मतलब आपने कर रखा था, ईयर वाइज कितने क्वेश्चन आते हैं, हिस्ट्री वगैरह ये सब भी। एंड सर मैंने काफी वीडियोस देखी एंड उसके बाद मैंने सर पर्सनल एनालिसिस किया उसका पेपर्स का कि पॉलिटी में कितने क्वेश्चन आते हैं, हिस्ट्री में कितने आते हैं, और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कौन सा टॉपिक की ज्यादा टारगेट कर रहे हैं, किस सेक्शन को ज्यादा टारगेट कर रहे हैं। एंड सर ये मैंने पूरा एनालिसिस किया था इसका। तो सर व्हाट आई रियलाइज वाज कि पॉलिटी अगर आप पढ़ लेंगे तो इट इज स्कोरिंग एज वेल एज इट इज इजी टू लर्न,
एंड उसके लिए सर बुक जो सब बोलते हैं सर बाइबल ऑफ पॉलिटी बोलते हैं सर सब लोग, लक्ष्मीकांत जो है। लक्ष्मीकांत, बिल्कुल सर आई हाँ सर मैं लक्ष्मीकांत मतलब आई टुक लक्ष्मीकांत, आई परचेज लक्ष्मीकांत एंड स्टार्टेड रीडिंग इट। तो सर उससे पहले मैंने मतलब प्लान बना लिया था कि मतलब क्या क्वेश्चन आते हैं सर। बेसिकली मैंने क्या किया था कि जब मैंने प्रीवियस इस क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए तो उसमें मैंने टॉपिक देखा, जैसे इफ दे हैव आस्क्ड सम क्वेश्चंस फ्रॉम प्रीएम्बल देन आई हैव जस्ट मेक अ मार्क ऑन प्रीएम्बल कि मैंने प्रीएम्बल लिख लिया कि अच्छा प्रीएम्बल से क्वेश्चन पूछते हैं। आफ्टर दैट मैंने देखा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो मैंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को मार्क कर लिया कि उससे क्वेश्चन पूछते हैं। एंड उसके बाद मैंने देखा वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, सीएम, पीएम, इनसे एक एक क्वेश्चन आता है। एंड कैग काफी पूछते हैं, अटॉर्नी जनरल काफी पूछते हैं, सुप्रीम कोर्ट इमरजेंसी से पूछेंगे आपसे क्वेश्चन। तो मैंने सर ऐसे टॉपिक जो थे मैंने एक लिस्ट प्रिपेयर कर ली कि ये चैप्टर्स हैं। देन सर आफ्टर दैट आई सॉ लक्ष्मीकांत, तो सर उसमें मैंने देखा कि इट इज़ वेरी डिटेल्ड, काफ़ी कुछ चीज़ें हैं उसमें पढ़ने के लिए। तो सर मैंने वही फोकस किया। मैंने पार्ट 1 जो सर अगर आपको याद होगा सर, लक्ष्मीकांत में पार्ट 1 जो है वो मैंने सर सारा पढ़ा हुआ है, एक्सेप्ट यूनियन टेरिटरीज एंड सिटीजनशिप। सर ये बहुत बोरिंग चैप्टर है तो मैंने छोड़ दिए ये वाले। सर बाकी मैंने पूरा पार्ट 1 पढ़ा है। आफ्टर दैट सर सीएम, पीएम, सीएजी, अटॉर्नी जनरल, फाइनेंस कमीशन, एंड आफ्टर दैट पीएम, प्रेसिडेंट, गवर्नर एंड स्टेट लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। एंड आफ्टर दैट आपका है सर, मेरे पास अभी सर नोटबुक आपको दिखा सकता हूँ सर। ये मैंने एक नोटबुक बनाई थी सर, इसमें मैंने पूरे लक्ष्मीकांत के सर पूरे नोट्स बनाए थे सर। स्टार्टिंग में एक्चुअली मुझे सर पहले पता नहीं था कि इसकी जरूरत नहीं है नोट्स बनाने की, लक्ष्मीकांत पहले नोट फॉर्म में है। बट सर फिर मैंने तो सर लेकिन फिर भी मैंने सर अपनी लैंग्वेज में बना ली, बिकॉज मैं काफ़ी सर शॉर्ट एब्रिविएशन यूज़ करता हूँ सर। मतलब सेंटेंसेस 10 वर्ड का होगा तो मैं 2 लाइन्स में भी इसको समझ लेता हूँ सर अपने आप। तो सर मैंने जैसे पार्ट 1 सर मैंने पूरा किया था, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल, देन सर यू कैन सी पार्लियामेंट, देन पंचायती राज इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन सर उसके बाद मैंने देन सर टॉपिक वाइज अगर मैं बताऊं आपको तो जैसे पार्लियामेंट में वो स्पीकर प्रोटम के बारे में बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, ये मैंने एनालाइज किया था। स्पीकर प्रोटम के बारे में पूछते हैं वो लोग, उसका फंक्शन क्या होता है। तो स्पीकर प्रोटम सर मैंने स्पेशली मार्क करा हुआ है इस पे, मैंने खुद मतलब स्पेशली पढ़ता था इसके बारे में। उसके बाद सर सेशंस ऑफ पार्लियामेंट पूछ लेते हैं वो लोग कि व्हाट इज एडजर्नमेंट मोशन एंड व्हाट इज एडजर्नमेंट सनडाई, डिफरेंस क्या होता है दोनों में। तो सर वो मैंने टारगेट किया था। आफ्टर दैट सर इसमें पार्लियामेंट्री कमेटीज सर क्वेश्चन बहुत पूछते हैं कि कमेटीज ऑन फाइनेंशियल अंडरटेकिंग, कमेटीज, एस्टिमेट कमेटी क्या फंक्शन होते हैं, कब बने थे, कितने मेंबर्स होते हैं। तो सर इस तरह मतलब मैंने टॉपिक के अंदर भी सर जो मतलब चीज़ें वो पूछती हैं उसको सर मैंने अच्छे से पूरा देखा था कि मतलब कैसे करना है प्रिपेयर। तो सर मैंने टॉपिक्स जो थे मैंने आपको बता दिए कि ये सब करने हैं, सुप्रीम कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट, फाइनेंस कमीशन, देन पीआईएल, देन यू हैव कैग, फाइनेंस कमीशन का कौन सा आर्टिकल होता है, आर्टिकल 280 होता है सर, कभी कभी यही पूछ लेते हैं। एंड सर मोस्ट इंपॉर्टेंट सर जो सबको पता है फंडामेंटल राइट्स, उसको सर छोड़ नहीं सकते हैं। फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, राइट सर, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपीज। एंड सर आपके डीपीएसपी भी सर मेरे को सारे याद थे कि मतलब कौन सा लिबरल इंटेलेक्चुअल है, कौन सा सोशलिस्टिक है, कौन सा गांधीयन है। एंड सर मैंने मतलब सारा अच्छा से अपने दिमाग से खेला था कि मतलब गांधीयन में हमें लगता है कि वो गांधीयन होगा, वो जो एनिमल्स कैटल्स वाला होता है, लेकिन वो होता नहीं है। तो सर ये मतलब जो आप अपने माइंड को प्रैक्टिस कर रहे हो सर, जो बोलते हैं ना सर पीस टाइम में द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। तो सर उसी टाइम से मैंने प्रिपरेशन की थी अपनी। तो सर मैंने उस पॉलिटी के लिए डिटेल्ड मैंने लक्ष्मीकांत अच्छे से पढ़ी थी। एंड सर रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं सर आपको झूठ नहीं बोलूंगा सर। मैंने सिर्फ ये नहीं कि मैंने सिर्फ एक बार पढ़ के मेरा हो गया सर, आई हैव रिवाइज्ड इट अ लॉट ऑफ टाइम्स। मैंने 10 से 12 बार इसको अपने नोट जो है पढ़ाई करी है इनकी। एंड सर मैंने हर बार अपने एग्जाम अटेम्प्ट के साथ चैप्टर्स ऐड ही किए हैं, जैसे पिछले वाला तो पढ़ना ही पढ़ना है, प्लस मैंने आगे एसपीएससी, यूपीएससी, उसके बाद जीपीएससी के बाद जीपीएससी भी एक सर होता है, उसमें छोटा सा दे रखा है पार्ट लक्ष्मीकांत में, मुझे याद है वो भी मैंने पढ़ा था। उसके बाद सर ऐड करता गया आर्टिकल्स, अमेंडमेंट्स सारे याद होने चाहिए। और सर कुछ टॉपिक्स होते हैं सर पॉलिटी में जैसे जो आपको मतलब आपको पता होने ही चाहिए सर, उसके बिना आप नहीं जा सकते एग्जाम में। जैसे आपको शेड्यूल सारे पता होने चाहिए, उसके लिए सर कोई सेपरेट चैप्टर नहीं है, शेड्यूल है, आपको शेड्यूल पता होने चाहिए। आपको सर ऑर्डिनेंस पावर पता होनी चाहिए प्रेसिडेंट की, आपको उसकी पार्डनिंग पावर पता होनी चाहिए कैसे किस आर्टिकल में होती है। यू हैव टू नो व्हाट इज एप्लीकेट ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड व्हाट डज इट यूज फॉर। एंड तो सर ये जो मतलब एक स्पेसिफिकली टॉपिक के बीच में भी एक जो आपके छोटे छोटे आपके जो मिलते हैं पढ़ने के लिए चंक्स, जो सर इनको मतलब काफी मैंने ब्रशअप कर लिया था अपना कि सर मतलब ये मेरे को कभी ना भूलें। तो मतलब सर मैं जैसे ही क्वेश्चन देखता था तो मेरे दिमाग में पूरा चैप्टर याद आता कि मतलब ऐसे से मैंने पढ़ा था। तो सर उसके हिसाब से मतलब मैंने करने शुरू किए थे। एंड सर पंचायती राज इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, तो वो भी आप पढ़ सकते हो। एंड सर पंचायती राज में सर आई हैव ऑब्जर्व की जो लक्ष्मीकांत वाली बुक है सर, उसमें उन्होंने सर पूरा वो मतलब दे नहीं रखा है। बिकॉज जो वो लोग क्वेश्चन पूछते हैं ना सर, वो लोग पूछते हैं कि सबसे पहले स्टेट में किस में आया था, सबसे पहले सर कौन सी स्टेट है जिसमें इतना इंपॉर्टेंट है पंचायती राज में सेक्शन। तो सर हमारी जो लक्ष्मीकांत है उसमें सिर्फ कमेटीज के बारे में दे रखा है, बलवंत राय कमेटी एंड और वर्मा कमेटी, वो ज्यादा है उसमें।
हाँ सर वो ज्यादा दे रखा है, तो सर वो मैंने तो काफी ऑब्जर्व किया कि ये तो पढ़ के गया था, ये भी काम नहीं आया। तो फिफ्थ एडिशन में सर तो वो था। जो फिफ्थ एडिशन थी उसमें तो कई जगहों पे, 2-3 जगहों पे प्रिंटेड भी गलत है। जो सिक्स्थ आई है अभी, जो लेटेस्ट आई, उसमें उन्होंने करेक्शन करे हैं। ठीक है, फिफ्थ में आई दो हैव सर जगह। फोर्थ एडिशन, तो मैंने फोर्थ पढ़ी है। अच्छा, मेरे पास भी बस फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, फोर्थ मुझे सबसे बेस्ट लगती है। एनीवेज, तो हाँ आप जरा देखो तीरथ को, the exam is over, he is joining the academy, आज भी फिंगर टिप्स पर है इसके चैप्टर्स। और ये एक ऐसा कैंडिडेट है हु इज नॉट ओनली गुड विद इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स। जनरली जो इंग्लिश और मैथ्स में अच्छा होता है वो जीएस में मैंने वीक ही देखा है, बट ही इज एक्सेप्शनली वेरी गुड इन पॉलिटी। इसने बिल्कुल पॉलिटी के अंदर भी मैथ्स की अप्रोच लगा दी, पूरे चैप्टर्स को डिवाइड कर दिया, कहाँ पे स्ट्रॉन्ग करना है, एडिशन करता गया। तो ही मतलब जो बीएससी फिजिक्स के अंदर फिजिक्स मैथ्स की अप्रोच है, इसने जीएस के अंदर भी लगा दी। आई एम श्योर अगर ये और थोड़ी प्रिपरेशन करता तो आई एम वेरी श्योर ये आईएएस ऑफिसर भी पक्का बन ही जाता, बट ही इज मोर डेडिकेटेड टू द आर्मी। ठीक है, तो सर तीरथ, व्हाट अबाउट वही द सर। अदर अदर सब्जेक्ट्स, क्या अप्रोच श्योर रही? सर। जो तुम्हारी हिस्ट्री हो गया, साइंस में तो मुझे लगता नहीं तुमने में ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ी होगी, क्योंकि साइंस के 25-30 क्वेश्चन होते हैं। तो तुम्हें शायद यस बायोलॉजी सर। में थोड़ी करनी पड़ी हो, क्योंकि बायोलॉजी ग्रेजुएशन में नहीं होगी आई तुम्हारे टेल पास सर। किसी फिजिक्स में। तो सर साइंस के श्योर। अंदर और वो करंट अफेयर्स के अंदर कितना, 6 महीने का करंट अफेयर पढ़ा? हालांकि तुम तो 2018 से न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, तो मुझे लगता है करंट अफेयर तुमने करा होगा। और अलग अलग सब्जेक्ट्स में क्या करा, और कौन सी बुक्स या बुक लिस्ट या न्यूज़पेपर्स तुम दूसरों को रेफर करोगे कि ये प्लीज कर लो? जैसे पॉलिटी के लिए तुमने लक्ष्मीकांत बोली है। श्योर सर, तो पॉलिटिक्स के लिए सर लक्ष्मीकांत मैंने सब बता दिया है सर। एंड नेक्स्ट थिंग इज सर, अब थी चीज बारी हिस्ट्री की। सर हिस्ट्री में मेरे को सर डिसाइड करना था। व्हेन आई फर्स्ट स्टार्टेड डूइंग हिस्ट्री, तो मैंने सर एशियन से स्टार्ट किया, बिकॉज सर मैंने उसमें भी देखा था कि न्योलिथिक एज, चालकोलिथिक एज में ये सब पूछते हैं। सर आपकी मैंने भी एक वीडियो देखी थी, उसमें आपने बताया था ब्रॉन्ज एज का पूछते हैं, कौन सी होती है ये। तो सर मैंने कहा कि चलो ये स्टार्ट करते हैं। अब तो वो मिक्स बट कर सर रहे देन आई हैं क्वेश्चन, रियलाइज, अब तो काफी एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न मिक्स करके बहुत क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ये सर मिक्स करके पूछ रहे हैं। तो सर देन आई रियलाइज कि सर एशियन तो अगर मैं कर भी लूंगा तो याद करना भी सर मुश्किल है, भूल जाती है सर मुझे। हाँ, तो सर एशियंट एंड मेडिवल सर आई कंप्लीटली लेफ्ट। ओके। एशियन एंड मेडिवल आई कंप्लीटली लेफ्ट सर, बिकॉज सर उसके क्वेश्चंस भी सर आप देखेंगे सर बहुत टफ क्वेश्चंस आते हैं उसके। सर एक्सेप्शनली वेल क्वेश्चंस आते हैं सर उसके। तो अगर सर किसी को पढ़नी भी है वो, तो आई वुड रिकमेंड कि क्लास 12th एंड क्लास 11th की एनसीईआरटी से पढ़ सकता है, बिकॉज दे आर मोर देन बेटर, है ना, एशियन एंड मेडिवल। तो सर व्हाट आई डिड वाज आई फोकस्ड ऑन सर दिस, आई मस्ट सर, मैं आपको दिखाता हूँ सर, ये बुक है स्पेक्ट्रम सर, जो हमारी आती है एक। हाँ, स्पेक्टर राजीव अहिर तो ये था। हाँ जी वही सर जी की सर ये स्पेक्ट्रम है। तो सर इसका मैंने बेसिकली इसका भी मैंने खूब एनालिसिस किया पहले अच्छे से, क्या पूछते हैं वो लोग। गांधी नहरा तो एज पहले एनडी के टाइम से बहुत इंपॉर्टेंट था, तो अभी भी सर पूछेंगे वो लोग। तो सर हिस्ट्री में मैंने ऑब्जर्व किया कि सर ये लोग जो क्वेश्चंस पूछते हैं बेसिकली, जैसे आपका जो एक रिवोल्ट ऑफ 1857 है, एक चैप्टर छोटा सा इसमें, उससे आपको एक क्वेश्चन पक्का आना ही आना है। अभी सर रिसेंटली उन्होंने एक दो सीरीज में आई थिंक वो नहीं आया, या फिर आई डोंट नो, मेरे को याद नहीं है। बट अभी रिवोल्ट इस ऑफ बार सीरीज में 1857 से, इन्होंने क्या करा है, वो बुक्स वाले क्वेश्चन, वो बंदोपाध्याय वगैरह वाले क्वेश्चंस पूछ लिए हाँ हैं, सर, वो यस बुक्स। सर, राइट और सर, वो तो किसी वो बुक सर में पढ़ के गया नहीं, था मैं वो सारी। बहुत ही अलग से पूछे हैं। और वो कोर्ट वाले क्वेश्चंस भी बहुत आए हैं बीच के अंदर, अलग अलग कोर्ट यस वाले। सर कोर्ट वाले, यस सर आई मस्ट से कि कोर्ट वाले क्वेश्चंस का ही पूछते हैं वो लोग ना, बिकॉज सर ये पहले भी एक ट्रेंड था, वो एक कोर्ट देते थे एंड दे वुड से कि किस हिस्टोरियन ने बोली है या किस किस फ्रीडम फाइटर पॉलिटिशियन ने ने बोली बोली है। है। हाँ तो सर वो थोड़ा सा बैक एक चेंज आया है। बाकी सर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में मैंने फोकस देखा कि ऑब्जर्व किया कि 1915 फ्रॉम 1915 टू 1947, या फिर अगर आप पर्टिकुलरली जाएंगे तो सर टिल सिविल डिसोबीडियंस 1932 के आसपास, जब आपका सर कैबिनेट कमीशन से पहले, 46 के पहले, क्रिप्स मिशन से पहले सर जो पार्ट है सर, जिसमें आपका सिविल डिसोबीडियंस, खिलाफत मूवमेंट, डिसाइल इक्वत पैक्ट, देन यू हैव आपका बी आर अम्बेडकर का गांधी इरविन पैक्ट आता है एक। उसके बाद आपकी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज आती हैं, भगत सिंह एंड राजगुरु वाली, देन आर्मरी रेड है, देन आपके पास उसके बाद सर आपका थियोसॉफिकल सोसाइटी वगैरह के क्वेश्चंस हैं, ब्रह्मो समाज, आर्य समाज पे क्वेश्चंस हैं, क्या उनके एजेंडा थे। तो सर ये पर्टिकुलरली मैंने क्वेश्चन वाइज इनको फिर से मैंने अगेन टारगेट किया था, और टॉपिक वाइज फिर मैं उस पर गया था। एंड तो सर मैंने फिर देखा इसमें कि रिवोल्ट ऑफ 1857 तो छोटा सा है, तो वो पढ़ लेता हूँ पूरा। तो सर उसमें क्या इंपॉर्टेंट है कि मैंने जो कहाँ से वो स्टार्ट हुआ था, जैसे वो मेरठ से 10 मई को स्टार्ट हुआ था 1857, वो पता होना चाहिए अच्छे से आपको, तो मैंने वो अच्छे से रिवाइज किया था। एंड किस किस लोकेशन पे कौन कौन से लीडर्स थे वो मैंने सारे अच्छे से रिवाइज किए थे। जैसे आपके लखनऊ में कौन था नवाब था, एंड अलग अलग कौन से थे। उसके बाद कौन सा ब्रिटिश कमांडर इन्वॉल्व था, कॉलिन कैम्पबेल को चुराया गया था, किसको मारा गया था, वो सब मैंने किया था। उसके बाद सर रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद आई मूव टू 1915 पार्ट, व्हेन गांधी जी केम फ्रॉम साउथ अफ्रीका
एंड सर कुछ एक क्वेश्चन सर पहले सीरीज में आया करता था कि गांधी जी ने वहाँ पे मतलब साउथ अफ्रीका में क्या किया था। लाइक उन्होंने एक सर आई डोंट पर्टिकुलरली रिमेम्बर सर, उन्होंने एक जो वहाँ पे ब्लैक्स लोग थे सर, वो लोग का कुछ ऑक्यूपेशन था, उनको रोड यूज नहीं करने दिया जाता था सर 10 o'clock के बाद। तो उन लोगों ने उनके लिए सर, तो बेसिकली जो हमारा मूवमेंट स्टार्ट हुआ था वहाँ से, जो सर ये बोलते हैं हमारा जो गांधी जी ने सत्याग्रह स्टार्ट किया था, बेसिकली वो वहीं से स्टार्ट हुआ था। तो सर ये चीज़ मैंने काफ़ी याद रखी थी कि अगर वो घुमा के पूछेगा कि बेसिकली कहाँ से स्टार्ट हुआ तो वो तो उसका आंसर क्या है। उसके बाद सर व्हेन ही केम बैक, तो सर चंपारण सत्याग्रह, इंडिगो प्लांटर्स, इंडिगो वगैरह जो था आपका, खेड़ा सत्याग्रह, यू हैव सरदार पटेल का जो था आपका 1918 में जो हुआ था सर, वो सब मतलब पर्टिकुलरली विद डेट्स एंड विद प्लेसेस एंड विद नेम्स। सर ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो पूछ लेते हैं वो लोग, आपका मतलब पूछ लेंगे कि हु टुक ओवर द मूवमेंट, एक का मूवमेंट किसने ओवरटुक की थी, और कौन से पीपल इन्वॉल्व थे इसमें, और कौन कौन से इसमें इन्वॉल्व नहीं थे, कब फांसी दी गई थी उनको। एंड सर ये सब चीज़ें जो थी मैंने काफ़ी फोकस करी थी। उसके बाद सर मैंने इनका सर ये बुक भी सर काफ़ी प्यारी है सर, इसमें काफ़ी शॉर्ट दे रखा है, और चैप्टर के एंड में समरी सर बहुत अच्छी दे रखी है। तो सर मैंने इसकी भी काफ़ी डिटेल नोट्स बना लिए थे एक बार अपने शॉर्ट करके। एंड सर बाकी सर जैसे बेसिकली पढ़ा था मैंने आर्य समाज, ब्रह्मो समाज में क्या क्या उनके एजेंडा थे मेन, राजा राम मोहन राय ने किया था और दयानंद सरस्वती ने क्या स्टार्ट किया था, तो सर वो मैंने थोड़ा फोकस रखा था। एंड सर उसके बाद एक क्वेश्चन आता है आपका, थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है किसने वो की थी, उसका क्या एम्स थे। तो सर ये जो क्वेश्चंस मतलब इनमें जो पूछते हैं, मतलब मैंने इसका सर पैटर्न क्रैक कर लिया था कि मतलब ये लोग इस टॉपिक से ये वाला क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अगर वो पूछेगा कि इसके बारे में तो वो सही है बाकी ये सर तो ये पूछेगा कि गो एड कि सर इसका एम क्या है, जैसे तो फिर वो पूछेगा कि इसका एम क्या है, वो उसमें ये नहीं पूछेगा कि कौन से ईयर में हुआ था। और अगर वो उसको ईयर पूछना है तो वो दूसरे क्वेश्चन पे जाएगा कि चिटगांव आर्मरी रेड किस ईयर में हुई थी, या फिर कब गांधी जी ने स्टार्ट किया था नॉन कॉपरेशन, खिलाफत मूवमेंट में क्यों सपोर्टिव थे। एंड सर वन मोर थिंग आई हैव ऑब्जर्व्ड इन हिस्ट्री दैट सर ये थोड़ा ओपिनियन वाइज सर क्वेश्चन पूछते हैं, जो आपके एक क्वेश्चन सर आते हैं ना, एक स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं कि स्टेटमेंट ए इज करेक्ट बट टू इज एक्सप्लेनेशन इज रॉन्ग, सर ये क्वेश्चन भी हिस्ट्री में पूछते हैं ये लोग। तो सर इसमें काफी ओपिनियन वाले क्वेश्चन है, इसमें मुझे सर थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी कि सर मुझे थोड़ा ना ओपिनियन वाइज मुझे कुछ और लगता था, बट उनके हिसाब से सर कुछ और था, तो सर वो मेरा सब काफ़ी गलत हुआ था वहाँ पे। बट सर बाकी जो मैंने पढ़ा था कि अपना रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ इन बंगाल, रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ इन महाराष्ट्र, कौन सा न्यूज़पेपर था उस टाइम पे, कौन सा उसमें एडिटोरियल था, बंगाल गैजेट वगैरह कब स्टार्ट हुआ था, बाय जेम्स सिक्की ने स्टार्ट किया था फर्स्ट टाइम। उसके बाद आपका मराठा इन इंग्लिश एंड ये स्टार्ट हुआ था, इनकी लैंग्वेज सर ये जो थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, ये सब चीज़ें, कौन कौन से पीपल इन्वॉल्व थे मूवमेंट्स के बीच में। एंड 3 एडिशनल चैप्टर्स मैंने पढ़े थे सर इसमें, जो क्वेश्चन पूछते हैं ये लोग। एक पढ़ा था मैंने पीजेंट अपराइजिंग्स, जो सर इसमें है डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन, जिसमें आपकी हार्टोक कमेटी आती है, यूनिवर्सिटी कमीशन 1902 आता है। उसके बाद आपका न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा था कि न्यूज़पेपर कैसे डेवलप हुआ था आपका, आपकी जो प्रेस एक्ट आते हैं, प्रेस एक्ट के बाद वेनिकुलर प्रेस एक्ट आता है 1878 का, वो सर मैंने थोड़ा पढ़ा था डिटेल में। तो सर ऐसे मतलब मैंने टॉपिक वाइज भी इसमें फोकस किया था कि मतलब मैं वो टॉपिक अच्छे से पढ़ लूँ एंड सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाऊँ। एंड सर व्हाट आई हैव रियलाइज्ड कि 8 to 9 क्वेश्चंस आते हैं इसमें, और आप सर अगर आप अच्छे से ये बुक पढ़ लोगे तो आप 5 to 6 क्वेश्चन तो आप एक्यूरेटली कर लोगे, बाकी 2 क्वेश्चन सर थोड़ा कभी हो जाता है आगे पीछे। तो सर मेरा ये स्ट्रेटजी था मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए सर। एंड व्हाट अबाउट साइंस करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी, अगर जो सब्जेक्ट्स तुमने करे? हाँ सर श्योर सर। तो सर ज्योग्राफी एक्चुअली मैंने क्या किया था, ज्योग्राफी सर काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, अगर आप देखेंगे तो उसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी आती है, देन उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी आती है, उसमें बहुत कुछ चीज़ें आती हैं। तो हाँ, तो फिजिकल ज्योग्राफी तो सर स्टार्टिंग में मैंने क्या किया था, मैंने 6 to 10 तक की एनसीईआरटीज जो थी उनका सर मैंने मतलब एक अनअकैडमी में कोर्स था, मैंने वो देखा था पहले, और खुद भी मैंने पर्सनली पढ़ी थी वो। तो सर आई रियलाइज कि उसमें काफ़ी चीज़ें हैं सर, ट्रॉपिकल डिसीजेस फॉरेस्ट, उसमें क्या क्या फीचर्स होते हैं, उसके बाद फिर आपका इक्विनॉक्स, समर इक्विनॉक्स, ये सब डेट्स कब होती हैं, कैसे चेंज होती हैं, और उसमें 6 महीने वो आपका डार्क रहता है, ब्राइट रहता है सर, ये सब चीज़ें। उसके लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स कितने डिग्रीज होते हैं, उसके बाद इंटरनेशनल डेट लाइन, ये सब टॉपिक्स जो थे, और प्लैनेट्स का सर साइज वाइज उनका इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो सर उसके बाद सर व्हेन आई गिव द एग्जाम, तो सर आई रियलाइज कि सर नहीं हो पा रहा है सर ज्योग्राफी में ना, वो सिर्फ पढ़ के नहीं हो पा रहा है। एंड सर मोर ओवर सर आई रियलाइज कि ज्योग्राफी में जो आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी सेक्शन है, जिसमें सर आपके करंट्स आते हैं, विच इज अ वार्म करंट, क्रोशियो करंट, ओवेशियो करंट वगैरह होते हैं आपके, बेंगोला करंट वगैरह अफ्रीकन से कोस्ट से पास करता है। उसके बाद आपका एल नीनो फिनोमेना है, एल नीनो के बाद आपका मानसून है, एंड उसके बाद आपका सर मेरे पास इसमें भी सर एक आई गेस सर अगर होगी तो मैं आपको सर दिखा सकता हूँ। सर इसमें सर इस नोटबुक में नहीं है सर, एक्चुअली मैंने एक ज्योग्राफी का पेपर्स का एनालिसिस करके एक 110 टॉपिक्स की लिस्ट बनाई थी, जो कि वो पूछते हैं, जैसे कि साइक्लोन्स पूछेगा वो, एंटी साइक्लोन, और साइक्लोन का वोल्केनो पूछेगा, कौन सा वोल्केनो में किस टाइप का रोग होता है, मेटामॉर्फिक रॉक्स वगैरह पूछेगा, आपका करंट्स पूछेगा, ह्यूमिडिटी पूछेगा, ह्यूमिडिटी कैसे मेजर करते हैं,
और रिलेटिव ह्यूमिडिटी परसेंटेज में मेजर करते हैं। और उसके बाद आपका करंट्स पूछेगा कि कौन सा करंट कहाँ से फ्लो करता है। उसके बाद फिर आपका सर पूछेगा कि विच करंट मेक दिस कोस्ट वेट और विच है ना विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। उसके बाद सर ज्योग्राफी में आई हैव रेड volcanoes all types, उसके बाद I have read currents all types, उसके बाद सर I have done the that sir I don't remember सर, वो जो सर अलग अलग जोन्स होते हैं ना सर, एक सर ह्यूमिड जोन होता है एंड सर हार्ले करंट एंड हार्ले साइकिल, वो सब एंड सर वो सब मैंने काफी डिटेल में पढ़ा था, राइट। तो सर मैंने वो सब काफी डिटेल में पढ़ा था एंड उसके बाद ट्रिब्यूटरीज रिवर्स की इंटरट्रॉपिकल यस सर कन्वर्जेंस तो ऊपर सारे जोन्स बनते हैं, यस सर साइकिल्स बनती हैं जो सारी, राइट सर ये साइकिल्स बनती हैं सर, वो भी पूछ लेते हैं कि मतलब राइट से लेफ्ट मूव करता है या लेफ्ट से राइट मूव करता है, वो पूछते हैं। एंड सर वन मोर थिंग मैं बोलूंगा ज्योग्राफी में, अगर आपको ऑब्जेक्टिवली जाना है, अगर आप मतलब ज्यादा नहीं करना है, थोड़ा स्मार्ट वर्क करना चाहते हैं, तो रीड ऑल द नेशनल पार्क्स, सारे नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पढ़ लीजिए, डैम्स पढ़ लीजिए, पासिस पढ़ लीजिए। उसके बाद आप जितने भी नेशनल हाईवेज कनेक्ट करते हैं वो पढ़ लीजिए। उसके बाद आप जितनी फैक्ट्रीज जहाँ जहाँ पे टाइप है वहाँ पढ़ लीजिए। इंडिया के जो क्रॉप पैटर्न्स है वो पढ़ लीजिए। खरीफ क्रॉप, राबी क्रॉप्स, कहाँ कहाँ किसकी प्रोडक्शन ज्यादा होती है वो पढ़ लीजिए। तो सर ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप से मैंने सारे पढ़े थे, मैप्स मैंने मार्क कर रखे थे सारे। सर अभी मेरे पास मैप्स नहीं होंगे। राइट एटलस यस सर एटलस, राइट सर एटलस, आई एम सॉरी सर मैंने पढ़ा था एटलस, उसमें मैंने काफी पार्क्स की लोकेशन वगैरह कौन कौन सी हैं। और सर बेसिकली ये जो क्वेश्चन पूछते हैं ये अरेंजिंग पूछते हैं कि लेफ्ट से राइट अरेंज करो, ईस्ट से वेस्ट करो, नॉर्थ से साउथ करो, नीचे से ऊपर यही करते हैं। और तो सर जब तक आपको लोकेशन ज्योग्राफी के अंदर कुछ क्वेश्चन वो भी आते हैं जो करंट से आते हैं, जैसे कि कोई जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर या एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर या प्रेजेंटली रिसेंटली गया है तो उससे रिलेटेड उसका कैपिटल कौन सा है, उस एरिया के बारे में। जैसे कि मिडिल ईस्ट का एरिया इनका बड़ा फेवरेट रहा है शुरू से, ये इजराइल जॉर्डन वाला इलाका, क्योंकि ये बड़ा कंफ्यूजिंग। मेडिटेरेनियन जो आपका सी है, एक मेडिटेरेनियन सी के बारे में आप देखना क्वेश्चन हमेशा पूछते हैं वो लोग, इसका क्लाइमेट क्यों होता है, ऐसा होता है वैसा होता है। तो सर ऐसा ऐसा आप पढ़ सकते हो मतलब ज्योग्राफी में अगर आपको टारगेट करना है। बट सर पर्सनली मैंने सर काफी ज्योग्राफी पढ़ ली है ना, तो सर मैं मतलब रिकमेंड करूंगा कि ज्योग्राफी में 8 to 9 क्वेश्चंस आते हैं जो हमारा पैटर्न है। एंड सर बायोलॉजी जो है उसमें भी सर 8 to 9 क्वेश्चन आते हैं। बट सर मैंने देखा कि मैंने फिर ज्योग्राफी को थोड़ा फोकस कम कर दिया था, मैंने सिर्फ वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ी थी। उसके बाद मैंने सर जो फोकस बाकी किया था मैंने सिर्फ बायोलॉजी पकड़ ली थी। फिर बायोलॉजी में सर मैंने पैटर्न ऑब्जर्व किया कि डीएनए आरएनए ये सब आ रहा है, डीएनए आरएनए, ह्यूमन फिजियोलॉजी, हार्ट माइंड, ये सब आपका जो ब्रेन का आपका जो आ रहा है पार्ट्स पूछ रहे हैं वो लोग, मेडुला ऑब्लांगोटा का फंक्शन क्या होता है। उसके बाद आपका किडनीज वगैरह में ब्राउनियन कैप्सूल क्या होता है। उसके बाद कौन कौन सा फिल्टर है, ब्लड में कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, डीएनए आरएनए बेसिकली ऑक्टेमर्स क्या होते हैं, हिस्टोन्स क्या होते हैं। तो सर ये बेसिकली मैंने 11th एंड 12th की जो एनसीईआरटी है उसमें कुछ सिलेक्टिव सर चैप्टर्स थे जो मैं सर मतलब बताया था यहाँ पे, सर हेल्पफुल रहेगा वो। सर बेसिकली वो सर ये लक्ष्मीकांत के कुछ हिस्से सर अभी बचे हुए हैं सर, उसमें जो ये सर चीफ मिनिस्टर वगैरह, तो सर उसमें जो प्लांट फिजियोलॉजी सर एक काफी इंपॉर्टेंट पूछते हैं वो लोग। प्लांट फिजियोलॉजी में सर वो लोग ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स पूछ लेते हैं, जाइलम का क्या फंक्शन है, फ्लोएम का क्या फंक्शन है, वो क्या आता है क्या नहीं आता है। उसके बाद सर वो लोग पूछ लेते हैं कि प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर वगैरह पूछ लेते हैं आपसे। देन सर आफ्टर दैट आपका अक्यूमुलेशन ऑफ लीव्स में आपका जो एलिमेंट अक्यूमुलेट होता है किसकी वजह से होता है, कौन सा एलिमेंट इन्वॉल्व होता है, जिंक होता है कि पोटेशियम होता है, ये सब पूछ लेते हैं। देन फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट सर एक चैप्टर है कि इसमें वो फोटोसिंथेसिस का फिनोमेना काफी पूछते हैं क्वेश्चन 1-2। उसके बाद सर डीएनए आरएनए एंड सर मोस्ट इंपोर्टेंट सर प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स जो हैं, गिबरेलिन, साइटोकाइनिन्स और ये जो ऑक्सीन है सर, ये एक ही चैप्टर है, 4-5 पेज का चैप्टर है सर ये। इसमें सर 1 से 2 क्वेश्चन पक्का पूछते हैं वो लोग, पूछ ले। वो बेसिकली सर उन्होंने अपना अभी पैटर्न थोड़ा चेंज कर दिया, वो लोग थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन पूछते हैं। They have started asking कि they are compound of these like these hormones are compound of which thing, like indole compounds हैं या फिर वो क्या compounds है। तो सर ये क्वेश्चन थोड़ा डीपली अगर किसी को पढ़ना है तो बायोलॉजी एमएस से वो डीएनए आरएनए एंड ह्यूमन फिजियोलॉजी, किडनीज का फंक्शन, ब्लड में क्या कंपोनेंट्स होते हैं और डब्ल्यूबीसी आरबीसी वगैरह, और प्लांट की जो थोड़ी फिजियोलॉजी है आप पढ़ सकते हैं। प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स पढ़ सकते हैं आप। और एनिमल फिजियोलॉजी में सर जाने की जरूरत नहीं है, दैट इज वेरी कॉम्प्लेक्स। तो सर आप प्लांट का सेक्शन पढ़ सकते हैं एंड जीन एडिटिंग वगैरह पूछते हैं। एंड सर 2-3 क्वेश्चंस हैं जो काफी इंपॉर्टेंट पूछते हैं वो लोग, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, गटेशन, ये 3 क्वेश्चन सर काफी पैट रहे हैं, ये रिपीट होते रहते हैं काफी। तो ये डेफिनेशन वाइज आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली क्या करते हैं हम, एक डीएनए का स्टैंड दूसरे डीएनए में कॉपी करते हैं। तो सर बायोलॉजी में सर ये चीजें मैंने सर काफी पढ़ी थी, तो मैंने सर इनका रिवीजन किया था, तो बायोलॉजी सर उससे मेरा हो गया सर। मतलब 8 क्वेश्चन थे, 8 में से आई वाज एबल टू डू 7 करेक्टली, एक्यूरेटली 7 मेरे बिल्कुल सही हो गए थे सर। करेक्ट, बायोलॉजी के लिए सर मैंने इतना किया था। तो तीरथ ने हमें बताया ज्योग्राफी के टॉपिक्स। एंड तीरथ, वो जो तुमने ज्योग्राफी की लिस्ट बनाई थी, आई थिंक यू विल बी एबल टू शेयर इट सो दैट वील पुट इट इन द कमेंट सेक्शन और इन द वीडियो।
ओके सर, आई विल फाइंड इट सर, माय हाँ तुम्हें, नोटबुक में है सर, इफ कहीं यू है गेट इट रखी हुई प्लीज तो। शेयर इट एंड और जो जो भी तुमने ऐसी लिस्ट बनाई है डू शेयर इट विद अस, जो तुम्हारे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहे हैं जो तुमने लिस्ट बनाई है, डू शेयर इट विद अस, क्योंकि वो ऑडियंस और व्यूअर्स जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, तो जैसे जब तुम एक प्रिपरेशन स्टेज में थे और तुम्हें पता है कि बहुत ज्यादा गलत नॉलेज भी है, जो बोलते हैं कि 10 दिन में क्रैक करें सीडीएस, 5 दिन में करें सीडीएस, उनको वो गुमराह नहीं होंगे और सही पता लगेगा भैया इतनी तैयारी के बाद जेंटलमैन कैडेट तैयार होता है। सर काफी सर मेहनत लगती है सर, काफी पढ़ाई की है मैंने सर, काफी टाइम लगा था। हाँ, तो सर करंट अफेयर का सर मैं बता दूं सर, मैंने करंट अफेयर में बेसिकली सर एज आई सेड कि मैं न्यूज़पेपर सर फरवरी 2018 से पढ़ना स्टार्ट किया था मैंने। तो सर उसमें क्या है कि वो आपका एसएसबी के लिए भी काम आता है। नॉट ओनली वो सर आपको एक, आपको मतलब इतना अवेयर कर देगा सर, आपको ऐसी चीजें पता चलती हैं न्यूज़पेपर से जो सर आपको बुक्स में नहीं मिलेंगी। करेक्ट। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, उनके फंक्शंस, और मतलब क्या हो रहा है दुनिया में बेसिकली, किस तरह के एक्ट्स आते हैं, किस तरह के लॉज आते हैं, एंड व्हाट ऑल काइंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस वी हैव, व्हाट आर देयर फंक्शंस, व्हिच कंट्रीज इन द लाइमलाइट नाउ, मिडिल ईस्टर्न पार्ट, आपका वर्ल्ड न्यूज़ वगैरह, इलेक्शन वगैरह, ये सब। तो सर सीडीएस में करंट अफेयर जो मैंने सर देखे हैं पैटर्न, जो वो है कि करंट अफेयर इज फेयरली फैक्चुअल, इट इज फेयरली फैक्चुअल। उसमें सर आपको वो, जैसे आपका, अगर आपका जैसे हॉल ऑफ फेम में किसी क्रिकेटर को ऐड किया गया है, तो दे वोंट आस्क कि किसको ऐड किया है, दे विल गिव यू कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन क्रिकेट हॉल ऑफ फेम अकॉर्डिंग टू 2011-19, दे विल गिव 4 ऑप्शंस, और उस 4 में से एक बंदा ऐड नहीं होगा। तो सर ऐसे क्वेश्चन वो पूछते हैं। तो अगर कोई बंदा, अगर कोई न्यूज आ रही है कि किसी को हॉल ऑफ फेम में ऐड किया गया है या किसी को कुछ प्राइज दिया गया है, तो सर उस टॉपिक के बारे में हमें वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल प्रिपरेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से बंदे बेसिकली इन्वॉल्व थे। एंड उसके बाद सर जैसे आरबीआई के गवर्नर जब चेंज हुए थे, शक्तिकांत दास बने थे, तो सर उनके बारे में एक हिस्ट्री थी कि उनसे पहले जो गवर्नर थे उन्होंने रिजाइन किया था। तो सर मैंने फिर उसके बारे में पढ़ा था कि कौन कौन से गवर्नर हैं जिन्होंने आज तक रिजाइन कर रखा है इसमें से, बिकॉज वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं यूपीएससी के, आस्क व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आरबीआई गवर्नर्स हैव नॉट रिजाइंड एंड फुल सर्विस करी है, ऐसे क्वेश्चंस। और करंट अफेयर में सर क्वेश्चन आपके जो डिफेंस के क्वेश्चंस होते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, डिफेंस प्रोक्योरमेंट से क्वेश्चन आने कि वाला कौन था सा उसका, हमने, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है वो। राइट सर, कि काफी कौन सी एक्सरसाइज वगैरह सर काफी होती हैं, तो उसमें एक दो पूछ लेते हैं कभी कभी, वो बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री हो तो। बाकी वो पूछते हैं कौन सी प्रोक्योरमेंट करी है, और चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ कमेटी का मेंबर कौन है, कौन होना चाहिए, और डिफेंस कमेटी में अभी कितने मेंबर हुए हैं, हमारी डिफेंस का जो बजट है वो कितने परसेंट से कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है, डिफेंस एक्सपो कहाँ हुआ था, नेक्स्ट डिफेंस एक्सपो कहाँ होने वाला है, और पूछ लेते हैं कि ये फैक्ट्री, कभी कभी पूछते हैं कि ये फैक्ट्री कहाँ पे है, या ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड कौन बनाता है, ये वेपन कौन बनाता है, और हमारा और ये जो टैंक जो लेटेस्ट मेन बैटल वेपन्स टैंक है वो एक्वायर कौन कर सा रहे हैं है। वो तो फेवरेट है। लेटेस्ट वेपन्स, राइट सर। मिसाइल, तो जैसे आज की डेट में S-400 चीनोक, अपाची, अग्नि सीरीज, पृथ्वी सीरीज, डीआरडीओ के वेपन्स जो बहुत सालों से बन ही रहे हैं, ठीक है, वो पूछते पूछते बहुत है। ये सर तो वो लोग काफी पूछते हैं, एंड बाकी स्पोर्ट्स के भी सर काफी पूछ लेते हैं वो लोग, एक दो क्वेश्चंस हाँ। कि किसका इंटरनेशनल रिकॉर्ड है, एंड कौन सा मतलब वुमेन का पूछ लेते हैं। एंड करंट अफेयर में सर बाकी मैं कहूंगा कि आप फेयरली न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए। एंड सर वन मोर थिंग, मैंने सर पीआईबी भी पढ़ना शुरू किया था, बिकॉज सर पीआईबी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सोर्स है। बिकॉज सर वो मैंने क्यों पढ़ना शुरू किया था, उसका रीजन है कि सर मैंने क्वेश्चन देखे थे एग्जाम में, सीरियस में पोर्टल्स वाले क्वेश्चन काफी आ रहे थे कि ये पोर्टल किसके लिए स्टार्ट किया गया है, ये स्कीम जो है किसके लिए स्टार्ट की गई है, इस स्कीम में कितने बेनिफिशियरीज हैं। तो सर पीआईबी में जो है वो डे टू डे अपडेट करते हैं, उसमें जो काम की चीजें सर वही देते हैं। तो सर मैंने वो मतलब पीआईबी सर थोड़ा मैंने पढ़ना शुरू किया था। तो मैं सर क्या करता था कि पीआईबी मतलब दिन में से 5-6 मिनट निकाल लूंगा, और सर पीआईबी में जो मेरे को इंपॉर्टेंट चीज लगेगी, कि जैसे नई एब्रिविएशन आई है, जैसे एक अभी आपका सोलर जो फर्स्ट इंटरनेशनल सोलर पावर प्लांट बना था यहाँ पे गुरुग्राम में है, जो सबसे वर्ल्ड लार्जेस्ट, तो उसके बारे में थोड़ा दे रखा था इन्फॉर्मेशन। तो मैं ऐसे मतलब छोटे छोटे नोट्स मैंने बना लिए थे अपने करंट अफेयर के, कि मतलब मेरे को काम आएंगे। और बाकी मतलब सर काफ़ी चीज़ें भी मतलब इंप्रूव हुई थी उससे। तो करंट अफेयर में सर मेन ये है कि डिफेंस के बारे में आप पढ़ लीजिए जितनी रिक्वायरमेंट्स हैं, आपका थोड़ा स्पोर्ट्स सेक्शन देख लीजिए, उसमें कौन कौन से नई नई चीज़ें हैं, एंड कौन सी मतलब नए नए इवेंट्स हो रहे हैं, जो एक्सेप्शनल इवेंट्स हो रहे हैं, जो कि मतलब इंटरनेशनल मतलब उनका इंपॉर्टेंस है, एंड कौन सी कंट्रीज इन्वॉल्व हैं न्यू चीज़ में, या कोई नया पैक्ट हुआ है। जैसे अभी रिसेंटली आपका जो इजराइल और यूएस का इजराइल और यूएई का जो पैक्ट हुआ है, जिसको आपने करेक्ट करेक्ट। नेगोशिएट हेल्प करा है ना, उससे उन्होंने तो उनके नोबेल पीस प्राइज मिला है उनको, अभी उनको नॉमिनेट किया गया है। सर वो चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाती है कि मतलब जो एक मतलब लाइम इंटरनेशनल लाइमलाइट में चीज़ आ जाएगी, वो ऑब्वियसली उससे क्वेश्चन बन जाता है सर एक, तो आप उस करेक्ट चीज़ का अगर ध्यान रखेंगे तो सर आई थिंक वो कर लेंगे। करेक्ट। तो एंड ये बाकी सर साइंस में सर कुछ नहीं था सर मेन। बोलो बोलो बोलो, तुम बोलो। सर साइंस में सर मेरा, सर साइंस में मैंने बायोलॉजी मैंने बेसिकली पढ़ी थी, एंड केमिस्ट्री एंड फिजिक्स में सर कुछ क्वेश्चन है, मैं बताया था हूँ सर आपको, जो बेसिकली रिपीट आते हैं।
फिजिक्स में सर। एक आपको वो पूछता है रेजिस्टेंस वाला क्वेश्चन, एक वायर ली, उसका लेंथ 4 गुना कर दिया, अभी रेजिस्टेंस कितना होगा उसका, R इज इक्वल टू रू एल बाई ए फॉर्मूला लगा के वो निकल जाता है। फिर आपको वो ग्रेविटी से क्वेश्चन पूछेगा, ग्रेविटेशन से पूछेगा आपको एक नया क्वेश्चन। उसके बाद सर ही विल आस्क यू अबाउट सरफेस टेंशन टेम्परेचर के साथ, यस सर, हाइट वाले, और सरफेस टेंशन के साथ टेम्परेचर के साथ कैसे बढ़ता है कम होता है, वो इवेपोरेशन आपका बढ़ता है कम होता है, हेटेरोजीनियस होमोजीनियस सॉल्यूशन आपका पूछ लेता है, वो कंपाउंड पूछ लेता है। एंड सर रिसेंटली जब मैंने एक सीडीएस दिया था 2019 वाला जो आप बोल रहे थे टफ आया था, उसमें सर आई हैव सीन केमिस्ट्री में सर उन्होंने आइसोमेरिज्म वगैरह भी सर ऐड करना शुरू कर दिया धीरे धीरे। वो 11th वाला आया था तो सर वो, हाँ सर 11 12 वाला, तो सर कुछ बच्चे सर वो ना पढ़ना शुरू कर दें, तो मैं बोलूंगा सर वो मत पढ़ना शुरू करो, वो एक ही बार आया है, क्या पता वो आगे आएगा नहीं आएगा, तो 11 12 मत पढ़ना शुरू कर देना सर, वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो जस्ट टेक ऑन योर बेसिक्स एंड एनसीईआरटीज आर बेस्ट सर, अगर आप वो पढ़ लेंगे तो इट विल बी फाइन सर। तो जीएस के लिए सर मैंने ये सर बहुत सारी जो पढ़ाई थी ये की थी, उससे सर इट वाज बेनिफिशियल सर। तो यहाँ पर तीरथ ने हमें बहुत ही डिटेल स्ट्रैटेजी बताई है, जैसे इसने इंग्लिश के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताए, मैथ्स के आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं, उसी तरीके से इसने हमें जीएस के भी बताए। एंड आप देखिए कितना इन डेप्थ बताया है इसने, पॉलिटी की कैसी प्रिपरेशन करी, अपने नोट्स शेयर करे हैं इसने हम सबके साथ पॉलिटी के लिए, मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर, और ये भी बताया कि ये एंशिएंट और मिडिवल में इसको क्या प्रॉब्लम आ रही थी, शायद किसी और की कोई और स्ट्रैटेजी हो सकती है, एंशिएंट मिडिवल में इसको क्या प्रॉब्लम आ रही थी, मॉडर्न इसने कैसे करी और कितनी बार पढ़ी। तो इसकी भी वही अप्रोच थी कि एक बुक को 10 बार पढ़ना है, ये नहीं कि एक टॉपिक 10 जगह से पढ़ना है आपको, यानी कि 10 टीचर या 10 पीडीएफ नहीं चाहिए, एक पीडीएफ एक बुक या जहां से भी आप पढ़ रहे हो आपको रेपिटेटिवली पढ़ना है, और उस एरिया पे कमांड लानी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज ये सारी चीजें बेकार हो जाएंगी। ठीक है, तो हिस्ट्री के बारे में बताया इसने, ज्योग्राफी के बारे में बताया हमें, पॉलिटी का तो बहुत ही इन डेप्थ एनालिसिस दिया है। अब देखिए टॉपिक्स पर आज भी इसकी बहुत कमांड है, ही रिमेंबर्स, और ये अभी भी पीआईबी एंड यू नो इवन दो ही सिलेक्टेड फॉर एवरीथिंग, वो हैबिट को अभी भी कंटिन्यू कर रहा है। अभी आपने एग्जांपल देखा करंट अफेयर्स का, इजराइल और यूएई का एग्जांपल दिया, और जो ट्रम्प हैज बीन नॉमिनेटेड फॉर दी नोबेल पीस प्राइज, उसके बारे में भी बात कर रही है। सो एनीवेज करंट अफेयर्स के अंदर डिफेंस करंट अफेयर्स, डील्स, और कहाँ से न्यूज़पेपर से पढ़े, एंड ही केप्ट ऑन मेकिंग हिज नोट्स। एंड तो हिस्ट्री हो गया हमारा, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, पूरा साइंस हो गया, और करंट अफेयर एरिया। एनी अदर एरिया जो तुमने जीएस पे कॉन्सेंट्रेट करे, विच जो तुमने करा, जो मैं मिस कर रहा हूँ अगर मेरे साइड से? सर ऐसे कोई सर मैंने एक्सेप्शनली कोई अलग मैंने एरिया कोई फोकस नहीं किया। इकोनॉमिक्स वगैरह सर मुझे सर कुछ खास लगती नहीं है सर, मुझे पढ़ नहीं पाता हूँ वो मैं। और सर एशियन में बोलूंगा कि मतलब मैंने उनका भी सर काफी एनालिसिस किया था, एशियन वगैरह का भी क्या क्वेश्चन आते हैं, बट सर ट्रेंड काफी चेंज हो गया है सर। एशियन वगैरह जो हिस्ट्री जो अगर किसी को पढ़नी है तो सर वो काफी ट्रेंड चेंज हो गया। तो सर मैंने न्यू वाला तो देखा नहीं, बट अगर किसी को मतलब जैनिज्म बुद्धिज्म वगैरह काफी पेट टॉपिक्स सर आपको पता ही है सर, आप बताते हो हर बार है ना, जैनिज्म बुद्धिज्म वगैरह सर, वो भी मैंने सर थोड़ा स्मार्ट बन के मैंने कहा चलो एक बार कर लेता हूँ, क्या पता एक आधा क्वेश्चन फंस जाए, तो मैंने पढ़ के गया था, बट सर काम नहीं आया सर वहाँ पे, बिकॉज दे हैव आस्क्ड, मतलब काफी इन डेप्थ में पूछा सर। वो एनडी के लिए सर काम आ सकता है, पूछ सकते हैं कि पहला सरमन कहाँ हुआ था, विशाली में या पटलिपुत्र में, या ये सब पूछ सकते हैं, बट सीरियस के लिए वुड रिकमेंड किया, बाकी सब पढ़ो सर ठीक हो जाएगा। एंड बाकी सर पॉलिटी में सर एक टॉपिक जो है सर मुझे थोड़ा लगता है सर वो बुक में भी नहीं मिला मेरे को, एंड आई हैव इवन फाउंड ट्राइड फाइंडिंग इट ऑन इंटरनेट, जो सर यूनियन काउंसिल्स वाला सर एक क्वेश्चन आया था, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स वाला सर, एक रिसेंटली सर पॉलिटी में क्वेश्चन आया था, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स। टॉपिक्स कह रहे हो ना, ये न्यू लक्ष्मीकांत में ऐड हो गए हैं। हाँ सर, ये मैंने एक्चुअली 4th एडिशन पढ़ी थी ना, इसलिए सर मेरे से अटेम्प्ट नहीं हुआ वो क्वेश्चन। तुम्हारे पास 4th एडिशन है, जो 5th और 6th आए हैं ना उसमें ऐड हो गए हैं, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझ रहा हूँ तुम्हारी, ठीक है। और वही प्रॉब्लम थी सर, पार्लियामेंट्री फोरम्स था, पार्लियामेंट्री फोरम्स 4th एडिशन में नहीं है, वो 5th में ऐड हो गया है, ठीक है, 5th और 6th में ऐड कर दिए हैं, ठीक है। असल में लक्ष्मीकांत सर भी यूपीएससी के पेपर में आ जाता है, फिर ऐड कर देते हैं, ठीक है सर वही ना सर, तो वही मैंने पेपर में देखा, मैंने कहा इसका तो 4-5 क्वेश्चन है यार, कुछ करना पड़ेगा। और सर एक और चीज सर मैं शेयर करना चाहूंगा, जीएस में मतलब पढ़ाई तो हम मतलब करके चले जाते हैं सर, बट हम एग्जाम में जब जाते हैं तो हमें थोड़ा मतलब आइडिया स्ट्रेस रहता है कि हमें कैसे करना है अटेम्प्ट। तो सर जीएस में बेसिकली मेरा अप्रोच ये था कि मतलब पहले मैं आई वाज अटेम्प्टिंग क्वेश्चन जिसमें मैं 100% श्योर हूँ सर, मतलब 100% आई एम सेइंग कि यूपीएससी भी से गलत नहीं कर सकता है सर। तो मैं पहले तो वो मिला के मेरे सर 27 to 28 29 30 ऐसे क्वेश्चंस होते थे सर, जितना कट ऑफ क्लियर करने के लिए चाहिए, मतलब 20 नंबर तो आ ही जाएंगे पक्का। एंड सर अभी बात आती है आगे स्कोर करने की, तो सर आगे मतलब फिर मैं उसके बाद थोड़ा सा सर आप रिस्क लोगे तो सर थोड़ा सा रिस्क तो लेना पड़ेगा, बट सर जीएस में मैं रिकमेंड करूंगा कि इतना ना लें अगर आपने इतना ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है आपकी, तो क्योंकि उसमें नेगेटिव मार्किंग हो जाती है।
तो सर मतलब मैं फिर एलिमिनेशन में सर आता, जिसमें मतलब मैं आई एम 66% श्योर, जिसमें मैं मतलब 50% श्योर हूँ, जिसमें 2 ऑप्शन में कंफ्यूज हूँ, और मतलब मुझे जो मेरा इंस्टिंक्ट बोल रही है, जितनी मैंने प्रैक्टिस की है, जितनी मैंने कर रखी है प्रैक्टिस, क्या हो सकता है इसका। तो सर मैंने वो क्वेश्चन टारगेट करने शुरू किए। तो सर मतलब फिर धीरे धीरे मतलब मैंने जो एडिशनल क्वेश्चंस मैं अटेम्प्ट कर सकता हूँ वो मैंने किए। तो मतलब आज तक आई हैव मैक्सिमम 54 क्वेश्चंस आई हैव अटेम्प्टेड ऑफ जीएस। 54 क्वेश्चंस आई हैव अटेम्प्टेड, एंड रिसेंटली लास्ट सीरीज अभी जो मेरा हुआ, इसमें मेरा आई हैव मस्ट हैव स्कोर्ड 40 मार्क्स, नियरली 40 मार्क्स आए होंगे मेरे 100 में से। करेक्ट करेक्ट। जीएस में तो यहाँ पर आपको तीरथ ने ये भी बताया कि पेपर स्ट्रैटेजी किस तरीके की होनी चाहिए आपकी, खासकर जीएस को अटेम्प्ट करने के लिए, कि पहले आप उन एरियाज पे कॉन्सेंट्रेट करो जहाँ आप 100% कॉन्फिडेंट हो। उसमें आपके 30 क्वेश्चन बन गए तो आपको एक राह की सांस मिलेगी, हाँ भैया कि पासिंग मार्क्स बन रहे। देन यू जंप ऑन टू द नेक्स्ट 10 एंड 15 जहां पर आप 60 to 80% श्योर हो, और जहां पर आपको अपने 60-70 बन गए, देन यू कैन, फिर उसके बाद फालतू तुक्के मारने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इतनी प्रिपरेशन के बाद अगर आपको पेपर टफ या इजी लग रहा है तो ज्यादातर कैंडिडेट्स के साथ यही होगा जो पास होने वाले हैं। ठीक है, बाकी तो फिर नॉर्मल जनता है जिनका हिसाब किताब अलग ही है। ठीक है, तो यहाँ पे तीरथ ने हमें सीडीएस की बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी दी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तीरथ इज दैट कि मैंने बहुत बच्चों को देखा जिनका जो एफकैट जब उनका क्लियर हो जाता है, वो उसी प्रिपरेशन के साथ सीडीएस में जाते हैं और फेल हो जाते हैं। वो काफी ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि एफकैट क्लियर हो गया तो सीडीएस भी निकाल लेंगे। एंड आई कीप ऑन सेइंग कि एफकैट और सीडीएस के एग्जाम में बहुत फर्क है। तो कैन यू टेल अबाउट इट कि एफकैट और सीडीएस में क्या डिफरेंस है, और क्या दोनों की किस तरीके की सिमिलर स्ट्रैटेजी रह सकती है? श्योर सर। सर इसमें सर लाइक यू सेड कि सर इट इज कम्प्लीटली डिफरेंट, दोनों एग्जाम्स का पैटर्न कम्प्लीटली डिफरेंट है। एंड सर आई मस्ट नॉट से कि सर ये फुलिशनेस ही होगी अगर कोई सेम प्रेपरेशन के साथ दोनों एग्जाम में जाता है तो। तो सर इसमें सर सीडीएस में लाइक आई टोल्ड यू सर इतना डिटेल्ड है, लेकिन एफकैट में आपको इतना डिटेल करने की तो जरूरत नहीं है। एफकैट में बेसिकली इट इज फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज कम्प्लीटली फैक्चुअल, सारे क्वेश्चंस वन वर्ड वाले हैं। एंड सर एफकट का इट हैज डिफरेंट सेट ऑफ पैटर्न्स, लाइक एक भारत रत्न क्वेश्चन पूछेगा तो पूछेगा स्पोर्ट्स या कब कब पूछेगा, उसके प्लेयर्स पूछेगा कौन कौन से होते हैं, रिकॉर्ड्स पूछ लेगा, वर्ल्ड रिकॉर्ड। जीके में स्टैटिक जीके में आपका फर्स्ट पूछता है वो फर्स्ट पीएम, फर्स्ट पर्सन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट, फर्स्ट एंड ये सब पूछता है, राइट। तो सर दोनों कम्प्लीटली डिफरेंट है। सीडीएस में हमें सर एफकेट में सर मैं मतलब कहना चाहता हूँ कि एक प्रॉब्लम ये होती है कि सीडीएस में एटलीस्ट वी नो कि पॉलिटी पूछेगा तो चलो ये पूछेगा चैप्टर से ये पूछ लेगा। सर एफकेट में कि एक क्वेश्चन आएगा वो कुछ भी पूछ सकता है सर। हाँ, वो कुछ भी, वो ही कैन आस्क एनीथिंग पूछता है भाई, और वो एथेंस ओलंपिक्स वाला तो 5 बार रिपीट हो चुका है। राइट सर, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जैसे सेम रिपीट होते रहते हैं सर, बार बार रिपीट होते रहते हैं, एंड ही कैन आस्क एनीथिंग सर। तो सर एफकेट में क्या है कि सर आपको सिलेबस की सर्टेनिटी थोड़ी कम है, मतलब जहां तक मुझे मतलब मेरे एक्सपीरियंस से लगता है। सीडीएस में थोड़ा सर्टेनिटी आपको ज्यादा है। तो सर एफकेट में अगर प्रिपरेशन करनी है तो सर आई मस्ट से कि मैंने सर खुद मतलब जब मैंने दिया था तो आई कुडंट क्लियर इट पहले। मेरे दोस्त खुद बोलते थे कि यार तू सीडीएस कर सकता, तू एफकेट क्यों नहीं कर सकता। तो सर इसमें यह है कि पैटर्न इज कम्प्लीटली डिफरेंट। तो सर अगर किसी के पास दिमाग में ऐसा है कि सिमिलर स्ट्रेटेजी के साथ जाना है तो मैं मैथ्स में सर बोलूंगा, अगर मैथ्स में आप अर्थमेटिक पढ़ लोगे तो एडवांस लेवल का अर्थमेटिक पढ़ लो सर, वो सीडीएस में भी काम आ जाएगा मैथ्स में आपके, और उसमें भी काम आ जाएगा। सेकंड चीज, आप करंट अफेयर्स अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप करंट अफेयर्स वगैरह पढ़ सकते हो, आपको सीडीएस में भी काम आ सकता है। तो थोड़ा डिफरेंस रहता है सर एफकेट के करंट अफेयर और सीडीएस में जो पूछते हैं वो लोग। एफकेट में इज मोर लाइक स्टैटिक पार्ट ज्यादा पूछ लेते हैं वो लोग, कितना मीटर्स का रिकॉर्ड है, एंड कुछ सिंपल क्वेश्चन पूछ लेते हैं कभी कभी, कौन सी गेम से कौन सा कप एसोसिएटेड है, कौन सा प्लेयर एसोसिएटेड है, रिसेंटली जिसको नॉमिनेट किया गया है अवार्ड के लिए वो किस गेम से एसोसिएटेड है। तो सर उसमें क्या है कि आपका मतलब थोड़ा पैटर्न डिफरेंट रहता है, मतलब सीडीएस से। सीडीएस में थोड़ा डिटेल्ड आपको पूछते हैं वो लोग, बट एफकेट में अगर आपको पढ़ना है तो आपको सर सेटिंग नॉलेज काफी ज्यादा होनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंगली। आपको थोड़ा पता होनी चाहिए भारत में पहली बार किसको दिया गया था। एफकेट में वो लूसेंट और फैक्चुअल वाला हिसाब किताब ज्यादा है। राइट सर, उसमें फैक्चुअल ज्यादा है सर। तो मतलब अगर किसी को मतलब कोई सोचता है कि मैं सीडीएस वाली स्ट्रेटेजी लेके एफकेट में जाऊंगा तो सर आई डोंट थिंक वो बेनिफिशियल होगा, या एफकेट की सीडीएस में लेके जाएगा तो इम्पॉसिबल ही हो जाएगा सर ऑलमोस्ट। क्योंकि अगर आप सिर्फ एफकेट लूसेंट पढ़ के जाओगे सीडीएस में तो फिर वहाँ सोना फिर अच्छे से कुछ और नहीं कर पाओगे। तो सर यही बात है उसमें। तो एफकेट में अगर करना है तो सर उसका कम्प्लीटली डिफरेंट स्ट्रेटेजी है उसका सर, उसका सीडीएस से बिल्कुल कोई रिलेशन नहीं है सर। ठीक है, तो यहाँ पर और तो एफकेट के लिए जो तीरथ हमें बोल रहा है कि उसके लिए फोकस आपका जो आपके सेविंग एरियाज है वो मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग रहेंगे, करेक्ट? राइट सर, रीजनिंग अगर आप कर दो सर, रीजनिंग आपको आगे भी काम आएगा और दिमाग भी अच्छा होगा, एप्लीकेशन अच्छी रहेगी आपकी एसएसबी में भी थोड़ा शार्प रहेंगे सर आप। वहाँ पे ओआईआर जो होता है हमारा उसमें काफी रीजनिंग आती है। टेस्ट ओआईआर में भी हेल्प होगी। हाँ तो सर वो उसमें भी काफी आपको हेल्प होगी। एंड मोर ओवर सर एफकेट में तो सर
मतलब मेरे हिसाब से टारगेट करना ही बहुत ईजी है। कुछ एरिया जैसे डॉट वाले 5 क्वेश्चन आएंगे तो वो तो प्रैक्टिस कर लो अच्छे से। आपने एक बार 100 क्वेश्चन कर लिए डॉट वाले तो आपकी एक्यूरेसी एकदम 90% तक पहुंच जाएगा। पैटर्न वाले क्वेश्चन आपने 100 पैटर्न वाले क्वेश्चन कर लिए तो आपकी एक्यूरेसी पहुंच जाएगी 80%। आप फर्स्ट वाले क्वेश्चन पढ़ लो सारे, फर्स्ट टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट, फर्स्ट टू क्लाइम ये, फर्स्ट टू क्लाइम वो, भारत रत्न वगैरह कुछ पेट टॉपिक्स हैं, करंट अफेयर्स कब सारे पढ़ लो जितने स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं। बुक्स, ऑथर्स एंड बुक्स काफी पूछते हैं लोग, आपको पढ़ लो। इंग्लिश की थोड़ी प्रैक्टिस कर लो, कॉम्प्रिहेंशन की, एलियन बेसिस। एक मिनट वो तुमने वो फर्स्ट से स्टार्ट करा था ना, फर्स्ट से पढ़ लो, फर्स्ट ये पढ़ लो, फर्स्ट पढ़ लो, वहां से रिपीट कर दो। यस सर। सर फर्स्ट में आई सेट की लाइक आपको स्टैटिक पोर्शन में अगर आपको जाना है तो आपको पता होना चाहिए कि मतलब फर्स्ट वो लोग थोड़ा फोकस करते हैं कि फर्स्ट वुमन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट, फर्स्ट पर्सन टू डू समथिंग लाइक है ना, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर टू लॉन्च दिस, और फर्स्ट एवर फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ एनी कंट्री, ये पूछते हैं बहुत क्वेश्चन। श्रीराम भंडार नायके वाला क्वेश्चन ये तो मतलब काफी बार रिपीट हुआ है। उसके बाद सर आपका मतलब फर्स्ट टाइम भारत रत्न कब दिया गया था, फर्स्ट टाइम ये अवार्ड कब दिया गया था, एंड फर्स्ट रिसिपिएंट कौन था, एंड सर ऐसा मतलब चीज़ें जो आपकी हैं वो आप पढ़ सकते हो। बाकी आप उसके बाद जो मैंने सर आपको बताया कि स्टैटिक पोर्शन में आप पॉलिटी से आप पढ़ सकते हो, आर्टिकल्स पढ़ सकते हो सभी। आप कभी पूछ लेते हैं कि आर्टिकल कौन से रिलेटेड है जो न्यूज़ में चल रहा होता है, आर्टिकल दिस आर्टिकल रिलेटेड टू विच, इसका पूछ सकते हैं वो लोग। उसके बाद मेंबर्स पूछ सकते हैं, हाउ मेनी मेंबर्स जस्ट प्रेसिडेंट इलेक्ट, कितने मेंबर्स इलेक्ट करता है वो सर। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं कि हाई कोर्ट के जो एडिशनल जज है उसका टेन्योर कितना होता है, 2 years का सर जो टेन्योर होता है। तो सर ऐसा मतलब जो कुछ क्वेश्चन आप अपनी तरफ से आप प्रिपेयर कर सकते हो। बाकी तो सर जो उसमें आएगा वो तो है ही है पढ़ने के लिए। तो सर आप ये सब टॉपिक जो आप पढ़ सकते हो सर, जो मेन आपको पढ़ना है। यहाँ पर भी पीवाईक्यूज हेल्प करेंगे AFCAT के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस? यस सर, ऑफ कोर्स इट वुड हेल्प अ लॉट। आपको एक नो डाउट आपको एक प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो जाएगी, आपको पैटर्न भी थोड़ा समझ आएगा, और आपके सर क्वेश्चंस कुछ रिपीट भी हो सकते हैं, बट आपको एक जनरल पैटर्न मिल जाएगा कि मतलब हाँ ये पूछता है। जैसे सर मैं आपको बताऊंगा कि एक हमारे ऑथर हैं सर, आई डोंट रिमेम्बर द नेम नाउ, बट एक बुक्स उनकी काफी पूछते हैं वो लोग, एफकेट में वही बार बार पूछ लेते हैं, उन्हीं की सेम ऑथर की बुक्स पूछते हैं बार बार। कुछ पूछते हैं सर द बॉय एंड द चाइल्ड, आई डोंट रिमेम्बर सर, काफी टाइम हो गया एफकेट का तो उसमें सर वो पूछ लेते हैं। उसके बाद आपको इवन दो आपको जो क्वेश्चंस मिलते हैं फाइंड द ऑड वन आउट, उसमें भी आपको 3 ऑथर की सेम बुक्स दे देगा और एक अलग होगी, तो आपको उसके लिए बुक्स पता होना चाहिए आपको। उसके बाद आपको वो क्रिकेटर्स वगैरह की बुक्स जैसे प्लेइंग इट माई वे या सेंचुरी वाली बुक जो आपकी लिखी है सुनील गावस्कर वगैरह, सचिन तेंदुलकर की, वो सब भी पूछ लेते हैं। उसके बाद बायोग्राफीज इंपॉर्टेंट होती हैं सर काफ़ी बुक्स वगैरह। और आपका सर इसमें एक क्वेश्चन आता है वेपन्स का, जिसमें आपको वो पूछते हैं कि ये जो मिसाइल है किस कंट्री से रिलेटेड है। जैसे आपको सर याद होगा इराक की पूछ लेते हैं वो लोग, एक मिसाइल है आई डोंट रिमेम्बर द नेम, टॉमहॉक मिसाइल यूएस की है, क्रूज मिसाइल किसकी है। और रिसेंटली सर अभी जैसे इंडिया हम हाइपर, यस सर, तो हम अभी इजराइल का स्पाइस बॉम्ब से जैसे पूछा गया था, एंड अभी सर जैसे हमने हाइपरसोनिक हमने कंट्रीज में ऐड हुए हैं जिसके पास हाइपरसोनिक मिसाइल कैपेबिलिटी है, तो ये पूछ सकते हैं कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज हाइपरसोनिक कैपेबिलिटी है ना, ऐसा। यस सर, जो टेस्ट करा हमने, तो ऐसी चीजें मतलब सर जो वो पूछ सकते हैं। तो उसमें सर आपको काफी ध्यान देना पड़ता है कि कौन सी वेपन की रेंज कितनी है। सर एफकेट में तो सर रेंज भी पूछ लेते हैं कभी कभी कि रेंज बताओ इसकी रेंज कितनी है, तो सर उसमें वही बोलूंगा कि बहुत ही तो सर वो हाँ सर बहुत फैक्चुअल है सर। मुझे तो सर पर्सनली सर आई डोंट लाइक एफकेट सर, पर्सनली बताऊं आपको तो मुझे एग्जाम पसंद नहीं है। मुझे सीरियस इज बहुत ज्यादा पसंद है कि चलो मेहनत है लेकिन एग्जाम अटेम्प्ट करते हैं तो मजा बड़ा आता है कि आ जाओ आप क्वेश्चन अब करेंगे, अच्छे से पढ़ के आए हम भी लेकिन एफकेट में तो सर इट इज ऑल रैंडम। सीडीएस एक तो यूपीएससी का एग्जाम है और सीडीएस बहुत कंसेप्चुअल है। यस सर, इट इज ओवरऑल कंसेप्चुअल। पर्सनालिटी में भी काफी चेंज लाता है वो, नॉलेज बेस में आपको देश वगैरह के बारे में काफी चीजें पढ़ती है, पता लगती है। इंग्लिश, मैथ्स और जीएस तो बिल्कुल हाउ द कंट्री वर्क्स और हाउ कंट्री की हिस्ट्री है, काफी होलिस्टिक डेवलपमेंट हो जाती है। राइट सर, एंड सर एफकेट में आप अपना स्कोर भी मतलब काफी चेंज कर सकते हो। लाइक मतलब सर मेरा फर्स्ट टाइम आई स्कोर्ड 3 marks लेस देन कट ऑफ, आई स्कोर्ड 137, 140 वाज कट ऑफ एंड आई फेल्ट वेरी बैड सर। तो उसके बाद मैंने फिर मार्क्स इंक्रीज किए, नेक्स्ट टाइम आई गेव तो उसमें मार्क्स मेरे और कम आए। फिर थर्ड टाइम तो मैंने सर थोड़ा अच्छे से मतलब देखा पैटर्न अच्छे से एनालाइज किया सीडीएस की तरह कि एफकेट को भी करते हैं कुछ, तो सर उसका काफी एनालाइज किया। देन आई स्कोर्ड 180 सीधा 137 से 180 सर। तो आप इसमें मार्क्स काफी रेशियो इंक्रीज कर सकते हो, बट सीडीएस में थोड़ा सर है उसमें थोड़ा मार्क्स ज्यादा इंक्रीज नहीं कर सकते आप। हाँ तो सर ये है एफकेट का। करेक्ट। तो यहाँ पर जितना आप नॉलेज बढ़ाओगे तो है। तो यहाँ पे तीरथ ने हमें सीडीएस के बारे में बताया, एफकेट के बारे में बताया, और इसने ये भी बताया कि he couldn't clear AFCAT 2 times, मतलब सीडीएस फर्स्ट अटेम्प्ट से रिकमेंड कर रहा है। तो ये भी कह रहा है कि सर पर्सनली ही इज मोर मतलब कि
इसको सीडीएस का एग्जाम ज्यादा पसंद है बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन, कंसेप्चुअलिटी एंड ऑल, एंड इवेंचुअली ही क्लियर्ड एफकेट आल्सो। तो इसकी स्ट्रैटेजी तो ये बेसिकली यही बता रहा है कि एफकेट की एक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी है, सीडीएस की एक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी है। उनमें से कुछ चैप्टर्स को आप मैथ्स में मर्ज जो आपको हेल्प होगी, बट इन दोनों की स्ट्रैटेजी थोड़ी डिफरेंट रहेगी और उस पर बड़ा ध्यान से आपको काम करना पड़ेगा। ये एक की दूसरे में फिट नहीं होती, और क्योंकि जैसे सीडीएस की जो जीएस है उससे आप, बल्कि सीडीएस की जीएस अगर आप करते हो तो आपको कंसेप्ट याद हो जाएंगे, तो फैक्ट याद करने में आसानी होती होगी तीरथ, राइट? राइट सर, यस सर, राइट राइट, ठीक है। तो यहाँ पर इसने में सीडीएस और एफकैट के बारे में बताया। यू वांट टू से समथिंग फॉर द एनडीए कैंडिडेट्स आल्सो? एनडीए के लिए सर मत से कि एक तो सर तो काफी वो होता है कि हम काफी सीरियस नहीं होते हैं एग्जाम को लेके, सोचते हैं कि हो जाएगा ऐसा ही तो सर है तो यूपीएससी का एग्जाम ही, तो अहमद से कि अगर पढ़ना है तो सर मैथ्स के लिए काफी अच्छी प्रैक्टिस कीजिए। आपके जो 12th के बेसिक्स हैं आपके, वही अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए बार बार, और प्रीवियस ईयर पेपर्स जरूर कीजिए एनडीए के लिए। एंड सर एनडीए में सर जीएस आई थिंक इज फेयरली गुड, उसके लिए सर जीएस में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती उसके, बिकॉज इंग्लिश के भी काफी क्वेश्चंस आते हैं, 50 क्वेश्चंस आर देयर आई थिंक इन इंग्लिश। एंड जीएस में भी सर पॉलिटी के भी पूछते हैं, वही क्वेश्चन पूछते हैं उसमें, बस ये है कि सिंपली दे आस्क आर्टिकल्स एंड सिंपली दे आस्क कि पार्लियामेंट में कितने हाउसेज होते हैं, इतना डिफिकल्ट नहीं होता है उसका जीएस जो सीडीएस। हाँ, इतना डिफिकल्ट नहीं होता है सर, एंड उसमें साइंस भी काफी इजी आती है। तो आई मस्ट से कि एनडी के लिए करना है तो आप फेयरली प्रीवियस से क्वेश्चन पेपर अच्छे से कर लो, आपके उसी से हो जाएगा सर। एनडी में ज्यादा मेहनत नहीं करनी। एनडीए आई थिंक फॉर नेशनल डिफेंस एकेडमी यू शुड बी गुड इन मैथ्स। मैथ्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। यस सर, मैथ्स इज इंपॉर्टेंट सर। हां, मैथ्स इज इंपॉर्टेंट सर, मैथ्स को अच्छा पढ़ना है, मैथ्स तो अच्छा करना है। इसीलिए जो बच्चे ये आईआईटी और इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं, जेई वगैरह की तैयारी कर रहे होते हैं और थोड़ा ठीक ठाक मैथ्स से उनका रिलेटिवली एनडीए निकल जाता है आराम से। यस सर, करेक्ट सर, ठीक है। सो अभी हमने वी डिड अ वेरी डिटेल्ड डिस्कशन एंड आई हैव मेट मेनी कैंडिडेट्स, बट Teeraj is very exceptionally brilliant in the concepts which he still knows। मतलब आप उसकी सब्जेक्ट्स पे कमांड देखिए, मैंने जनरली देखा है जिसकी मैथ्स और इंग्लिश पे होती है, जीएस इज ओके, बट ही इज एक्सेप्शनली वर्क्ड वेरी हार्ड इन जनरल स्टडीज। ऐसा नहीं है कि इसका बीएससी फिजिक्स बैकग्राउंड था तो सोचा कि बस इंग्लिश और मैथ्स में स्कोर कर लूंगा और जीएस में 30 मार्क्स ले आऊंगा और रिकमेंड हो जाऊंगा, ये भी जनरली लोग करते हैं। इसने जीएस में भी बड़ी तगड़ी मेहनत करी है, दैट शोज इन हिज रैंक दैट ही इज रैंक नंबर 37, तभी टॉप रैंकर्स में आया है। ठीक है, इज इन द टॉप 50 मेरिट लिस्ट, आईएमए के अंदर आया है, ऑल इंडिया विच इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस एकेडमीज नॉट ओनली इन आवर कंट्री बट इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो और वो मेहनत दिखती है इसके, आपने जिस तरीके से टॉपिक्स एनालाइज करे और हमें बताए हैं तो वो दिख रहा है कि उतना हार्डवर्क गया है डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अंदर। तो यहाँ पर हमने सीडीएस, एफकैट और एनडीए के बारे में बात करी और पूरे रिटन एग्जामिनेशन को समझा। और नेक्स्ट नाउ वी विल मूव टू द सेकंड पार्ट, जो जहां पर इसका एसएसबी के बैकग्राउंड को समझेंगे। 8 एसएसबीज दिए हैं इसने अलग अलग जगह पर, 3 बार रिकमेंडेड हुआ है और फाइनली अब 149 कोर्स इंडियन मिलिट्री एकेडमी का ज्वाइन करेगा। सो लेट्स मूव ऑन टू द एसएसबी साइड नाउ। For the next part of the video, stay tuned and do follow me on Instagram, Twitter and Facebook for dedicated guidance on various defense, CAPF and other examinations. All the links have been given in the description. Jai Hind.